Good evening, everyone. Welcome. I'm Priya Dubey. I'm an interior designer. I stay in Calcutta. I started practicing the law of attraction and gratitude for the past 2.5 years, and it's been amazing. I have manifested many things. My relationship with my mom is amazing. I live with my mom, my brother, my bhabhi, and my niece. So I can understand how many of you might be facing this situation that mama ने कुछ कहा, भाई ने कुछ कहा, बहन ने कुछ कहा, how things जगह से पे रखो सामान. So I think I can kind of relate with these issues which I felt even when I was a teenager or in my preteens and also now. Okay, so some of these things have really magically vanished, and my life has become much more smooth and easy. Okay, and regarding my relationship with my brother, that has improved majorly. Otherwise it was always this sibling teasing, and things used to happen like that, as I've shared in my earlier sessions also. So something that you want to talk about, what is your conception about law of attraction or manifestation, or did you come here just because your mom and dad said नहीं नहीं सेशन करना पड़ेगा, कर लो 10 दिन के लिए फ्री का सेशन है, ऐसा था क्या? No, so No, you can unmute and tell me. Yes. Yes, Yeah. Okay. 12 years old also. Yes. Oh, I have to do the chat thing also, no? That everyone can write. Oh. Now I can't do that, na? I have to go in the settings and do it. Okay. So you have to unmute and say that is the best thing, so that we all get to know each other. It's just a 10-day session. Normally, when we do the magic book, it's for 28 days. But since the schools are open, I thought, an evening session for an hour or so would be better. And you can do your school practices, homeworks, tuitions, studies, and do something which is very, I think, essential for everyone today. Yeah. So please unmute and share. Many of you, I think, might have done the magic book earlier, last year, or some law of attraction concept you must be having because your parents are into it. Yes. Yeah, someone has to start, ना? पहले आप वाला नहीं होने वाला है. Otherwise, I'll do inky pinky and someone जिसके ऊपर आएगा, जैसे ना टीचर बोल दिया, अरे पीछे छुप जाओ, उसके पीछे छुप जा, कहीं मैम मेरे को नहीं देख लिया, मेरे से ही क्वेश्चन नहीं पूछ ले. It should not be like that, okay? It has to be an open interactive session. I know आज हमारा first session ही है, ठीक है? And we have to get to know each other before we open up and speak nicely. But at least we'll have to start. Yeah? Otherwise, yes. how are you? I'm great, but who are you? You have to show your face, pretty face. Yes. Yes. I'm great. Thank you. And how are you? Ma'am, I'm fine. Very nice. So, honey, where are you from and how old are you? Ma'am, I'm 12 plus and Okay. I'm from West Bengal. Okay. Very nice. And what do you expect from this session? Have you heard of law of attraction? कि सबको लाइक रिस्पेक्ट करना है और सबके लिए थैंकफुल होना. ओके, वेरी नाइस. सबके लिए थैंकफुल होना है. यस, ग्रैटिट्यूड हमको ये सिखाता है कि हर चीज़, हर सिचुएशन में हमको थैंकफुल होना चाहिए. कुछ भी हो रहा है, वी हैव टू मेंटेन आवर पॉजिटिविटी. आपने यही सीखा होगा, घर में कोई फॉलो करता होगा, आपने यही समझा होगा, है ना? सी, इफ़ यू फील हम इंग्लिश में ज़्यादा बोल रहे हैं एंड यू वुड वांट द सेशन टू बी इन हिंदी, आप बोल देना. आई कीप स्विचिंग बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे. ओके मैम. Yes, okay, yes, honey, so very nice. So what are you expecting? कि जब आप समझ रहे हो कि ग्रैटिट्यूड है, तो आपको लग रहा है कि कुछ आपको चाहिए पाने के लिए आप सेशन में आए हो, या अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो, इसलिए आए हो? Yes, यस मैम. okay, very nice. यस Uh, मैम. okay. Yes, any someone else wants to share? या टॉक अबाउट कि क्या आप कहाँ से हो, क्या एज है आपकी, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. यस तनिष्का, वी आर लविंग ऑल दीज अमेजिंग थिंग्स दैट यू आर ट्राइंग. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू, बट आई थॉट आज फर्स्ट डे करेंगे तो वो लोग सोचेंगे, सब लोग सोचेंगे कि मैम तो बहुत ही मस्त हैं, इसलिए मैंने आज खाली बटरफ्लाई उड़ाई हैं अपने पीछे. यस. यस, कोई और शेयर करना चाहता है? देखिए, ये सेशन में कोई रीडिंग नहीं है. आई विल बी डूइंग सम प्रेजेंटेशंस
के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? और उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछोगे, ठीक है? चैट आज मैंने खाली ऑफ करके रखी हुई है जस्ट टू अंडरस्टैंड। पिछले सेशन में कुछ कुछ हुआ था तो आई जस्ट वांटेड टू बी ऑन द सेफर साइड। सो इसीलिए वी विल जस्ट, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ओके? यस, किसी और को कुछ पूछना है, बोलना है, और शुड वी स्टार्ट? आप कहाँ से हो? इतने सारे जन आए हैं आप लोग, 30 पीपल आर हियर। सो अब प्लीज लेट्स इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। बोलें कि आप कहाँ से हो, कौन से क्लास Hi, में? हाँ, I'll do it first. यस प्रेक्षा प्लीज। So I'm Preksha. Australia. ओके, यस प्रेक्षा। I'm from Gaya, Bihar, and Yes. I'm 16 years old. Okay, wonderful. Yes. And you had done the magic book earlier, right? No? No, Oh, Mama had done your it. mom had done. Yes, yes. Okay, very nice, very nice. And next, who is next? Yes, Kanishka. Yeah. So, hello Priya ma'am. So, I'm Kanishka Malpani. I'm from Surat, Okay. and I have done a magic session before of Suvarna ma'am, and she recommended us to do this one also. So, it was my first magic session that time. So, I just wanted to learn more about it. I was very curious about it. It was the only first session we had, so I thought it would be fun to join with you also. Yes, very good. But this is not a magic session, though. We will Yeah. be taking some portions from the magic book into this session. It is more about law of attraction and gratitude. And 28-day session को मैंने थोड़ा सा compress करके कुछ कुछ चीज़ें इधर उधर करके I have done it on my own. Let's see how it happens. अगर ज़रूरत लगेगा कि नहीं magic book करना है तो अगले महीने फिर कर लेंगे magic book, ठीक है? Yes. So thank you for your sharing. Yes. Next, who is next? I am from Australia. Yes. And let us see your 99-year-old young voiced face. Yes. Okay. Yes. Next. Who's next? Otherwise, we'll go by alphabetical order. A से कौन है यहाँ पे? अभी ने बोल दिया, अशप्रीत, आभा, you are next. आप बताओ आप कहाँ से हो? Otherwise, it's okay. We can start the session if you feel, you want to open up, speak about what you want, what this session is all about, then we'll take it from there. Okay? Yes. Yeah. So I'm Abha and I'm from Pune. I'm 19 years old. Yeah. Very nice. Happy to have you here. You have some concept of the law of attraction or gratitude? No, not exactly. This is my first session. So this is very new to me. I'm trying to learn something out of it. Wonderful. Yeah. Yes. Yeah. Very nice. Yeah. Yes. Yeah. Yes. You raised your hand, Prayas. Hi, Hi. my actual name is Kshitij Dubey, and I'm joining with the idea of my uncle Prayas Ras. He has done gratitude and all. Hmm. Okay. Hello, Okay. Priya ji. Hello. So such a good session you are taking. Thank you so much for. Thank you. Thank you, Prayas. Let me start. Then we'll take a call. अच्छा है कि नहीं? The kids will tell us. I'll do my best. Yes. Thank you. Thank you. Yes, Kshitij. Happy to have you here. Yeah. Yes. Supriya ji's son. Yes, Kshitij. Very, very nice to hear from you. And I'm happy. And I'm sure if you follow what we learn from law of attraction and what the magic book is trying to tell us, it will be amazing. Okay? Yeah. Yeah. So, Ma'am, I can say. yes, please. You have to tell me your name also. Hello, Ma'am, Priya. I'm Harshil Namani. I'm from Gorakhpur. Okay. Okay. Very I'm nice. And how old are you? studying. I'm 11 years old. Okay. Very sweet. Yes. Very nice. Yeah. Happy to have you here. Yeah. So, yes. Very nice. Someone else wants to share, or should we start the session? Yes, I am Manav Hello. Jain. Hello, Yes, Priya ma'am. ji. Hello, Neelam ji. Happy to see you. Hello. Three generations here. Yes, wonderful, wonderful. And all will practice gratitude and life will be more magical. Yes. 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 मैं अभी तो कर Actually. रहा था. हाँ, yes, Manav. Yes, Manav. I बोलिए. am 11 years old. Okay, very good. Very sweet. And where are you My from? mama has done the magical class. Okay, very good. Kolkata.
कोलकाता। ओके वंडरफुल। सो आई थिंक वी लेट स्टार्ट। देखिए हम लोग जब ये सेशन स्टार्ट करते हैं तो हम क्या कराते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। वार्म अप क्यों करते हैं कि अभी आपने कुछ होमवर्क किया होगा या मे बी पढ़ाई की होगी, ट्यूशन से आए होंगे, डिनर किया होगा, थोड़ा सा ना स्लीपी लेजी फील कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे बट थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगा कि कैसा सेशन होगा। तो हमारी जो एनर्जी है उसको हम लोग चेंज करके इस सेशन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको चेंज कैसे करते हैं हम लोग सब थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। क्या वार्म अप होता है? आप सबको वाली पोएम पता है 10 लिटिल फिंगर्स? एवरीवन नोज? No, ma'am. नो मैम। सो वी विल लर्न। जिसको पता है प्लीज बताइए, किसको पता है? नो वन नोज? ओके सो आई विल टेल यू एंड आई एम I know श्योर bit like पूरा अच्छे से नहीं. पूरा अच्छे से नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, वी डोंट हैव टू स्टैंड एंड डू इट, ओके। हम लोग बैठ के अपनी एनर्जी को ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? दे आर वेरी जस्ट 2-3 लाइन्स ऑफ दिस नर्सरी राइम विच वील से 10 लिटिल फिंगर्स, 10 लिटिल टोज, 2 लिटिल ईयर्स एंड 1 लिटिल नोज, ओके। ये हम लोग 2 बार बोलेंगे और थोड़ा फास्ट बोलेंगे और जोर से अपने हाथ को शेक करना है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न तो है ही, वो उसको कोई ज़रूरी नहीं, बट ऐसा करके बहुत मज़ा आता है, ठीक है। ट्रस्ट मी, हम लोग ये यहाँ कर रहे हैं, जब आपके मम्मी लोग भी ये सेशन करते हैं मेरे संग, तो हम लोग सब लोग सेशन के पहले ये करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड लेट्स सी, इट इज़ रियली लॉट ऑफ फन। हाँ, सो प्लीज़ स्विच ऑन योर कैमराज सो दैट आई कैन सी दैट एवरीवन इज डूइंग इट, या। और आपको अनम्यूट करना है ताकि हमको सुनाई भी दे कि हाँ आपको पोएम आ गई है, नहीं आ गई है, ठीक है। सो द लाइन्स आर 10 लिटिल फिंगर्स, 10 लिटिल टोज, 2 लिटिल ईयर्स एंड 1 लिटिल नोज, ओके। एवरीवन इज गेम फॉर इट, या? Okay, so let's switch on the camera so that I can see, yes, everyone is doing, yeah. So please start. So 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. उसमें इतना से शर्माने की बात नहीं है, you seriously have to do it, okay? It feels awesome, ठीक है। और आज आप थोड़ा से ऐसे से कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ द 10 days ऑफ दिस सेशन यू विल फील, अरे हर क्लास के पहले ऐसे क्यों नहीं करते हम लोग, ठीक है। सो वी विल नॉट स्टैंड अप एंड से एनीथिंग एल्स। हाँ, हम लोग यही करके स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट एवरीवन ऑन म्यूट, ओके, सो दैट सेशन गोज। जब आपको कोई क्वेश्चन करना होगा या आपको कोई क्वेरी होगी, यू विल रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट दैट पर्सन। इज दैट क्लियर? सो दैट द सेशन गोज अ लिटिल स्मूथली। सो I guess Avi, it's 1:30 in Australia, so I think if you're feeling sleepy, you can leave and take a nap, okay? And you can see the Okay, recording. ma'am. Thank you. Yeah, thank you. Yes, so I'll share the screen. Yeah, just 1 second. Yeah. Yes, Tripti, you had raised your hand. Okay. So now when we see this image, what is everyone seeing? Oh, sorry, हाँ मेरे को तो unmute. It has to be an interactive session, हाँ तभी होएगा। Yeah, please sorry, आप unmute करके बोलो yes. We'll keep it interactive. अगर आपको लगेगा कि कोई जन है जिसको नहीं अच्छा लग रहा है, you can easily leave. It's a voluntary free session. आपको अच्छा लग रहा है तो आप attend करिए. I would want you to be here every day, participate so that others are also interacting nicely and participating, yeah. So thank you. Yes, please share क्या लिखा हुआ है और क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? Crescent moon and a tree's bark maybe. हाँ, ट्रीज बाग। आपको नहीं दिख रहा? ये हाथ है यहाँ पे एक तो, there's a hand, और हैंड के ऊपर में सब कुछ है। Mountains, हाँ, and mountains, moon, planets, sun, yes, हाँ, stars, and everything is in the palm of your hand, okay? ये कैसे होएगा? Everything is in the palm of your hand, हाँ। तो आपको लगेगा कि अरे ड्राइंग करने वाले तो कुछ भी बना देते I'm हैं। back. वेरी गुड। ड्राइंग करने वाले तो कुछ भी बना देते हैं, है ना? आप ऐसे ही सोच रहे होगे, बट एक्चुअल में ये बात है कि हमको जो कुछ भी चाहिए वो सिर्फ हमारे हाथ में है। बस इतना सा दूर है, हमको क्या करना है? जस्ट कुछ चीज़ों को फॉलो करना है और वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। So, gratitude. Through gratitude, through lots of things. First, let's see what it is, yeah. So today we are going to talk about
लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड। ये सेशन में हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आई विल टेल यू क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये एक यूनिवर्सल लॉ की तरह होता है। सबको पता है ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स Yes, क्या होता है? ma'am. Yes, ma'am. या कोई बताना चाहेगा? यहाँ पे कई थोड़े छोटे बच्चे भी हैं, उनको हो सकता है नहीं पता हो। आप बताना चाहते हो कि आपके अंडरस्टैंडिंग में क्या है The लॉ ऑफ? force which attracts one object to another. यस, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। और ये लॉ ऑफ, जब हम ग्रेविटी की बात करें, वो हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी जो आपने कहा लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है जो अर्थ हमको पुल करता है, ठीक है। आप क्या कभी सोचते हो कि जो एप्पल गिरता है वो नीचे ही क्यों गिरता है? कभी आपने सोचा? कुछ भी सामान गिरता है वो जमीन पे ही क्यों जाता है? आपने ऐसा सोचा कभी? यस Yes. यस। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी ये होता है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई कप गिराया तो वो नीचे नहीं गिरेगा और वो टूटेगा नहीं? हाँ, या आपका फोन गिरा तो वो नीचे नहीं जाएगा, हवा में उड़ के वापस टेबल पे आ जाएगा? ऐसा कहीं होता है? No. कितनी चीजें हमसे बचपन में टूटी हुई है, अभी भी गिर के टूटी हैं, बताइए। हाँ, Yes, माय ma'am. बहुत सारी. बहुत सारी ना। माय मॉम यूज्ड टू से, तुम्हारे हाथ में तो शनि है। आई हैड बटर फिंगर्स। हम कुछ भी उठाते थे वो अक्सर गिर पड़ता था। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मेरे संग ये बहुत होता था। तब हम सोचते थे ओहो क्यों गिर पड़ी, ये कैसे गिर पड़ी? हाँ, तो इसलिए गिर पड़ती थी। या हर चीज़ क्यों गिरती है? बिकॉज लॉ ऑफ ग्रेविटी हमेशा काम करता रहता है, हर जन पे काम करता है, हर चीज़ पे काम करता है। तो वो क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटी इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। वो यूनिवर्स का एक लॉ है। हर चीज़ अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होके गिरती है, और वो प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट है। माने वो ऊपर से अगर कुछ भी गिरा है तो वो ज़मीन पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। चाहे आप उसको 10th फ्लोर से फेंकिए या फर्स्ट फ्लोर से फेंकिए, टेबल से फेंकिए, हर चीज़ ज़मीन पे ही गिरेगी। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बुक हो, पेपर हो, ग्लास हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल फॉल ऑन अर्थ, ठीक है। तो इट इज़ इम्पार्शियल एंड इम्पर्सनल। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ गिरेगी वो नीचे ज़मीन पे ही जाएगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसा ही एक लॉ है, ठीक है। वो हमेशा काम करता रहता है। कैसे काम करता है? जो हम चीज़ें सोच रहे होते हैं वो ही हमारे पास अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हमने जो सोचा, हाँ, माने हर चीज़। अब जैसे देखो, आपने देखा होगा कि जो स्कूल में आपकी फ्रेंड्स हैं, या जो लोग अभी आगे बड़े क्लास में आ गए हैं या कॉलेज में हैं, यू माइट हैव सीन दैट आपका जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है दे हैव सिमिलर टेस्ट। आपने ऐसा देखा है दैट इफ़ यू आर इनटू रीडिंग बुक्स, आपकी फ्रेंड्स अक्सर वही होते हैं जिनको भी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, हाँ। या इफ़ यू आर इनटू स्पोर्ट, तो आपके फ्रेंड्स वैसे ही होते हैं जिनको उस स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, या वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट है, या कोडिंग में इंटरेस्ट है। जनरली लाइक माइंडेड चीज़ें, लाइक माइंडेड पीपल ग्रेविटेट टुवर्ड्स ईच अदर। वो एक माने अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट इन द सेंस लाइक नॉट कि वो वैसा अट्रैक्शन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं। ये अट्रैक्शन मतलब कि वो एकजुट हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, सुना है आपने? Yes, ma'am. यस, तो बिल्कुल वैसे ही। तो जो कुछ भी अट्रैक्ट होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि उन लोग दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, कुछ ना कुछ उनकी वाइब्स सेम होती हैं। वाइब्स का मतलब पता है सबको? कूल वाइब, हाँ, बैड वाइब, आपने सुना होगा ऐसा, कोई बोलता होगा, राइट। तो वैसे ही लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो पहला तो ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक ग्रेविटी, मतलब वो होता ही होता है, वो एक्ट करता ही करता है। तो हमारे लाइफ में जो कुछ भी हुआ है आज तक या आगे भी जो होगा, इट इज़ ओनली बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। माने हमने जैसा सोचा उसी को हमने अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है, उसी चीज़ को अट्रैक्ट किया है, उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है लॉ को। जैसे हमने पढ़ा ना कि लॉ ऑफ ग्रेविटी इज़ प्रिसाइज, एग्जैक्ट, इम्पार्शियल, इम्पर्सनल। माने अगर आपने नेगेटिव चीज़ें सोची हैं कि अरे आज तो घर जाने में देर हो गई, ऐसा नहीं हो कि मम्मा डांटे हमको, ठीक है। तो आप घर जाते हो, सबसे पहले मम्मा ही खड़ी होती गेट पे, आज तुमको इतना लेट कहाँ से हो गया, टाइम पे घर आना चाहिए था, यू नो। या आपने होमवर्क नहीं किया है एंड यू गो टू स्कूल और आप यू आर थिंकिंग कि ओ गॉड आज तो मेरा होमवर्क नहीं हुआ है, कहीं मैम मेरे से ही कॉपी नहीं मांग ले, मेरे से ही नहीं पूछ लें कुछ आंसर। एंड व्हाट हैपन्स, आप देखोगे कि उसी दिन आपसे मैम ने क्वेश्चन का आंसर पूछा है। हैज़ इट हैपेंड विद यू?
कि आप कुछ सोच के गए हो कि अरे मैम मेरे यस ऐसे ही हुआ है, या आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा है एग्जाम में एंड यू गो फॉर योर एग्जाम और आप सोच रहे हो बस यही चैप्टर नहीं पढ़ा, इसका क्वेश्चन नहीं आया, वो and तो you are- किस्मत होती है। वो किस्मत नहीं होती है। एवरीथिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज एट वर्क। आपने ऐसा हुआ है कभी आप घर आ रहे हो, आपने सोचा है ओह आज तो मेरा समोसा खाने का मन कर रहा है, या आज तो मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, या मिठाई खाने का मन कर रहा है, और बिना बोले आपके लिए घर में ऑलरेडी या तो मम्मा लेके आई है, या कोई फ्रेंड लेके आ गया, या पापा लेके आ गए। हैज इट हैपेंड विद यू? या हाँ, और अगर नहीं हुआ है ऐसा तो हो Yes. नहीं सकता। अगर हुआ है हो सकता है आपने नोटिस नहीं किया हो, लेकिन ऐसा ही होता है। अगर आपने सोचा ओ हो कल पार्टी में जाना है, कल बर्थडे पार्टी में जाना है, हाँ समथिंग कि मुझे तो ये ड्रेस पहननी है, वो आयरन है कि नहीं है, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग नेगेटिव अबाउट इट तो वो वैसा ही होने लगता है। सो दैट इज़ वाई एवरीथिंग दैट हैपन्स फॉलोज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैसे होता है, लेट्स रीड। whatever you give attention to gets attracted। ठीक है, माने जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो ही हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होता है। ठीक है, इट कैन बी कि आपने सोचा अरे कल मेरे को फ्रेंड्स के संग लंच पे जाना है, या फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में जाना है, कहीं मेरा ना ये पिंपल नहीं निकल आए, एंड यू आर थिंकिंग और आप देखोगे सुबह उठते एक पिंपल निकल आया है। ठीक है, या आपको लगा कि वो हो ऐसा नहीं हो आज घर जाएं और मम्मा ने ना परवल की सब्जी बनाई है, ऐसा तो नहीं हुआ कि कल संडे अब परवल की सब्जी बनेगी और आप देखोगे कि परवल की सब्जी बन गई, बिकॉज यू आर गिविंग योर अटेंशन टू इट। वेन एवर यू आर गिविंग अटेंशन टू समथिंग, क्या होता है, हमारा फोकस जहाँ जाता है वो ही हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होता है। दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, या तो ये चीज़ें जो हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे हमारे लाइफ में एक एक चीज़ बनाती हैं। एवरीथिंग दैट हैपन्स फॉलोज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे करता है काम, हम जिस चीज़ को सोच रहे हैं, जो हमारा प्रोमिनेंट थॉट है, वो ही हमारे लाइफ में अट्रैक्ट हो जाता है। या लेट्स सी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, माने अगर हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मेरा ये सामान, मेरी डायरी भीग जाए, ये समथिंग, तो वैसा ही होने लगता है लाइफ में। ओके, सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी जैसे देखिए, अब क्या हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं, थॉट्स आर मैग्नेटिक, माने जो चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं वो ही हमारे लाइफ में आती है। ठीक है, हम लोगों ने ये देख लिया है। आप अपने लाइफ में आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, ये इसलिए करनी है बिकॉज आई एम थिंकिंग कि ये जो हम सोच रहे होते हैं वो ही होता है। ठीक है, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट लाइक, ये सिर्फ हमने नहीं कहा है, ये न्यूटन का लॉ है जो ये बता रहा है। ठीक है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे थॉट्स जाते हैं और वैसी ही चीज़ें हम अपने लाइफ में वापस अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ लाइक वट एवर यू आर थिंकिंग ऑफ, यू आर अट्रैक्टिंग दैट। ओके, सो अच्छा, इसीलिए हमको क्या सोचना है, अगर आप ये सोच रहे हो कि ओ मेरे को डांट तो नहीं पड़ेगी, मेरा फ़ोन तो नहीं गिर जाएगा, मेरा पेन तो नहीं खो जाएगा, मैम मेरे से ही क्वेश्चन नहीं पूछ लें, मेरे से ही कॉपी नहीं मांग लें स्कूल में, सो इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, वैसे ही चीज़ें होने लगती हैं। ओके, सो एवरीवन इज क्लियर अप टू दिस? या Yes, ma'am. या वेरी नाइस। कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछोगे, ठीक है, मैसेज करने के पहले। इफ़ यू आस्क मी इट विल बी बेटर, बिकॉज बाकी सी जब क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग उसको और एलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये आप बताइए, थॉट्स मैग्नेटिक क्यों होते हैं, कैसे होते हैं थॉट्स मैग्नेटिक? हम जो सोचते हैं वही होता है। यस, हम जो सोचते हैं वही होता है, बट कैसे होता है? हमको ये समझना चाहिए कि हम जैसे क्योंकि हम यूनिवर्स को वही मैसेज दे रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। हाँ, यस, True तो Lord. यूनिवर्स आपको वही दे देता है। यस, वेरी गुड। प्रेक्षा बताइए। अगर हम खराब सोचेंगे तो हमारे साथ खराब ही होता जाएगा, और अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होता जाएगा। हाँ, वैसे ही होता जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? जो सोच रहे होते हैं वो ऐसे कहीं ना कहीं आपके जो माइंड में जो है वो आपको दिखने लगता है ऐसा वो हो रहा है, क्योंकि आपका माइंड उस चीज को सोच रहा होता है, तो आपको बाहर भी ऐसा लगता है कि वो चीज हो रही है। True Lord. Excuse me. हम बताते हैं कैसे। हाँ, यस, हु सेड एक्सक्यूज मी? मानव? Me, हाँ. What is कैमरा ऑन करिए। like attracts like? हाँ, अच्छा, व्हाट यू आर आस्किंग कि व्हाट इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक? Yes. देखो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, गुड क्वेश्चन, यू आर यंग इसलिए हम बताते हैं। हम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अब जैसे सपोज व्हाट स्पोर्ट डू यू लाइक, और एनी सब्जेक्ट दैट यू लाइक, प्लीज टेल मी। Cricket. अभी आई एम आस्किंग मानव।
बैडमिंटन। सॉरी। हाँ, या यू लाइक बैडमिंटन, ओके। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको बैडमिंटन अच्छा लग रहा है, आप उसके बारे में पॉजिटिव चीजें सोच रहे हो, तो आपको गिफ्ट किस टाइप के मिलते हैं? बैडमिंटन की रैकेट्स वैसे मिल सकती है। मिल सकते हैं? अच्छा, मिले नहीं अभी, तो मिल जाने चाहिए। मिले हैं, हाँ, मिले हैं। मिले हैं ना। तो यही होता है। आप बोलोगे नहीं नो। सबको पता है, ठीक है, सबको पता है इसलिए मिलते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि आपको जो अच्छा लगता है उसी टाइप की चीजें आपको मिलती हैं, आपको वही चीजों पे आपका ध्यान रहता है, ठीक है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वो होता है। आप देखोगे स्कूल में आपके जनरली फ्रेंड्स वैसे ही बनेंगे जिनको बैडमिंटन अच्छा लग रहा है। आप उस पर और एनर्जी दोगे और फोकस दोगे तो आपके आसपास वैसी ही चीज़ें आएंगी जो बैडमिंटन से रिलेटेड होंगी। आपको कोई बताएगा कि अरे इसका ना कोच बहुत अच्छा है बैडमिंटन वाला, आप मानव को वहाँ पे भेजिए। समवन कैन टेल योर पेरेंट्स, ओके। या स्कूल में टीचर देखेगी दैट यू आर सो गुड एट बैडमिंटन, वही बोलेगी मानव लेट्स दूसरे दूसरे तुम और अच्छे से एक्स्ट्रा कोचिंग कर लो, यू आर सो गुड एट इट। तो क्या तुम उसको पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हो, तुम उसके बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हारे आजू बाजू वैसे ही बैडमिंटन से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, ठीक है। दैट इज हाउ इट हैपन्स, या। अच्छा, अब ये, या थैंक यू मानव। तो अभी क्यों होता है, हम क्यों हमारे थॉट्स मैग्नेटिक होते हैं? आपने देखा है कि रिमोट से आप जब टीवी का चैनल बदल रहे होते हो तो ऐसा क्यों होता है? एक चैनल पे गाने आ रहे होते हैं, एक चैनल पे स्पोर्ट्स का कुछ आ रहा होता है, एक चैनल पे कोई सीरियल आ रहे होते हैं, एक पे न्यूज़ आ रही होती है। ऐसा क्यों होता है? टीवी वालों की वजह से। किसके वजह से? टीवी वालों की वजह से। कि अलग अलग लोगों को अलग चीजें पसंद होती है, हाँ होती तो है, लेकिन तो रिमोट सबके लिए टीवी भी एक ही है, हाँ। बट वो कैसे हो जाता है कि उसी रिमोट से इतनी सारी चीजें दिख जाती हैं? कैसे होता है ये? हम्म? हाँ, Ma'am, अगर remote is the control of remote has the control of the TV. What to यस like? कंट्रोल, यस वेरी नाइस, लेकिन कैसे कंट्रोल करना है? we tune Our into the mind Ma'am, has the control infrared of the rays. remote. यस यस, वन एट अ टाइम। यस नित्या, यू वर सेइंग समथिंग? Tune into that channel's frequency. यस, वी ट्यून इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट चैनल। जैसे आपने सुना होगा ना, रेडियो पे भी आप सुनते हो, तो जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो चैनल बदल जाता है, ठीक है। तो हमारे थॉट्स जैसे, हर जो थॉट होता है ना, हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो जिस फ्रीक्वेंसी का थॉट हम एमिट करते हैं, माने जो हमारा थॉट है उसकी, जैसे सपोज हम सैड हैं हम, ठीक है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? सैड सी होगी, रोतलू सी होगी। तो क्या होगा, मेरे को आजू बाजू लोग भी ऐसे ही मिलेंगे, या हम गाना सुन रहे हो सडनली सैड सॉन्ग मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। तो वैसे ही जैसे रिमोट की फ्रीक्वेंसी से हम लोग चैनल डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं। लाइक यू चेंज द चैनल, गाना बदल जाता है, यू चेंज द चैनल, स्पोर्ट्स आने लगता है, न्यूज़ आने लगती है, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट वी आर ऑल्सो एमिटिंग अ फ्रीक्वेंसी, वी इन द सेंस आर थॉट्स आर एमिटिंग अ फ्रीक्वेंसी। तो जब हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं तो वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो वील जस्ट मेक इट मोर सिंपल कि हमारे पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव चैनल दिखाते हैं, ओके और हमारे नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव चैनल दिखाते हैं। सबको पॉजिटिव नेगेटिव पता है, ये आई एम श्योर। या पॉजिटिव मतलब अच्छी चीज़ें, लव, हैप्पीनेस, जॉय, मस्ती। एंड नेगेटिव मतलब क्या? डांट, गुस्सा, सैडनेस, इरिटेशन, एंगर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब हम अच्छी फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं, अच्छे थॉट्स रखते हैं, सो देन वी आर अट्रैक्टिंग नाइस थिंग्स। या तो आर थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिव थिंग्स। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ऐसे काम करता है। सो इफ़ वी आर फीलिंग नेगेटिव, इफ़ वी आर फीलिंग सैड, लो, एंग्री, इरिटेटेड, गुस्सा कर रहे हैं हम लोग, तो हमको वैसे ही सिचुएशंस मिलेंगी। इफ़ यू आर एंग्री, तो आप देखोगे आपकी बेस्ट फ्रेंड भी आपसे एंग्री है, ओके। मे बी द टीचर इज ऑल्सो स्कोल्डिंग यू। कभी ऐसा हुआ है कि आपको चोट लगी एंड यू आर सैड एंड अपसेट, और उसके बाद एक के बाद एक सब गड़बड़ होता चला जाता है आपके। अगर बैग में पानी चला गया इन द रेन्स, हाँ, तो आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। या सो व्हाट इज हैपनिंग इज, तो वट एवर thoughts we have, we are emitting that frequency, और वैसी situations are getting attracted in our life. Yeah, so that is how thoughts are magnetic. माने जैसे thought हम emit कर रहे हैं, because we are talking about law of gravity, law of attraction, दो magnets कैसे एक दूसरे पास attract होते हैं? Through the attractive power. Yeah. Same way, when we are emitting positive thoughts, we are attracting positive things in our life. और thoughts क्योंकि magnetic होते हैं, तो हमको बहुत alert और aware होना चाहिए कि मेरा thought कैसा है,
Okay, if I am thinking nice things, if I am thinking ki yes, wow, tomorrow I'll have puchka, tomorrow is Sunday, I can sleep till late, I can read a book, I can watch TV, तो मेरे थॉट्स कैसे हैं? हैप्पी थॉट्स हैं, गुड थॉट्स हैं, या तो मेरा कल का दिन वैसे ही होगा। और अगर मैं ये सोचा ओ हो फिर से संडे आ गया, मेरे को अपनी वार्डरोब ठीक करनी है, मेरे को होमवर्क करना है, हाँ मेरे को अपने सब मम्मा बोलेगी ये सामान यहाँ रखो, वो सामान वहाँ रखो, तो क्या होगा? मेरा कल का संडे वैसा ही होगा जैसे मेरे थॉट्स हैं उसके बारे में। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो वट एवर थॉट्स यू आर हैविंग दैट इज क्रिएटिंग योर लाइफ। हाँ, हम पॉजिटिव थॉट्स एमिट करेंगे, माई संडे माई मंडे विल बी लाइक दैट एंड ईच डे इज मेकिंग माई लाइफ। Okay, so let's continue. Yeah, so thoughts क्या हैं? Yeah, yes, you have a question? मैम यू आर सेइंग मैम मतलब जो हम लोग सोचते हैं वही होता है, लेकिन मैं जब भी सोचता हूँ कि मेरा आज होमवर्क इस टाइम पे हो जाएगा, इस टाइम पे हो जाएगा, लेकिन वो डन नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ ऐसा थॉट करने से अगर होने लगता तो आप सोचो ना कि सबके पास सब लोग विराट कोहली से मिल पाते, है ना, सब लोग फर्स्ट आ जाते, राइट, है ना, सब कुछ सबके मन से होता है, बट वो कैसे होता है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हर थॉट पूरा तभी होता है, उसके पीछे भी ना एक साइंस होती है। ठीक है, डिस्कस अबाउट दैट। ओके, यस, सो क्यों कोई थॉट होता है पूरा और कोई थॉट नहीं होता है, हम लोग उसके बारे में इन द कमिंग डेज वी विल रीड अबाउट दैट, वी विल लर्न अबाउट दैट। तो अब हम लोग ने बात करी थॉट्स आर मैग्नेटिक। ठीक है, थॉट्स क्या करते हैं? थॉट्स हमारे लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, तो दे हैव एन अट्रैक्शन पावर। ठीक है, तो सबसे पावरफुल क्या हो गया? थॉट हो गया। थॉट यानी आप सोचो ना, दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं एक इंसान के मन में, मिनिमम 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं। तो आप सोचोगे हर थॉट सच होने लगेगा? नहीं, जिस थॉट पे हम ध्यान देंगे, जिस सोच को हम एनर्जी देंगे, वो थॉट सच होता है। और कैसे एनर्जी देंगे, कितनी एनर्जी देंगे, वो हम लोग धीरे धीरे हम समझेंगे आगे चल के। ठीक है, सो थॉट्स हैव दिस अट्रैक्शन पावर। ठीक है, वो मैग्नेटिक हैं और वो ही हमारे लाइफ में हर चीज़ का कारण है, वो ही कॉज है हमारे लाइफ में हर चीज़ होने का। ओके, सो यू हैव अंडरस्टूड दिस। थॉट्स अट्रैक्ट करते हैं जो भी लाइफ में चीज़ें होती हैं, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स लाइक दैट। थॉट्स के पास इतना पावर होता है कि वो मैग्नेटिकली कुछ भी चीज़ को लाइफ में अट्रैक्ट करता है। मेरे काम का है हमारे लाइफ पेरेंट्स आगे होती है। बोला है, लिखा है। ओके, सो यस, लेट्स, हाँ अच्छा सॉरी, हाँ, तो फीलिंग गुड इज द रियल सीक्रेट। अब हमारे जो थॉट्स होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि वो पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं? अगर मैंने सोचा ओहो कितनी गंदी बात है, मंडे को फिर से स्कूल है, कॉलेज है, हमको जाना पड़ेगा, ये थॉट कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये कैसे पता चलेगा? उसके पीछे की फीलिंग जान के। हाँ, अगर हमारी फीलिंग उसके बारे में अच्छी आ रही है, इट्स लाइक कोई थॉट आया कि मन में चॉकलेट खाना है, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है उससे? अगर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छे इमोशन आ रहे हैं, मतलब वो थॉट पॉजिटिव है। ठीक है, अगर सोचो कि वो हो मंडे को तो हमको जल्दी उठना पड़ेगा, मेरा तो उसके पहले कोचिंग है कि ट्यूशन है, जल्दी उठना पड़ेगा, और आपकी फीलिंग क्या आ रही है? अच्छी नहीं आ रही है, या यस, तो वो क्या हो रहा है? वो आपको नेगेटिविटी दे रहा है। ठीक है, तो जब नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी लाइफ में। तो हमको ऑब्जर्व करना है कि हमारा थॉट कैसा है, और हमारा थॉट अच्छा है या गंदा है, वो हमको पता चलेगा हमारी फीलिंग से। इट्स लाइक इफ आई टेल एवरीवन थिंक अबाउट डेयरी मिल्क, एवरीवन थिंक अबाउट डेयरी मिल्क, आपको मन में अच्छा लग रहा है कि गंदा लग रहा है? बहुत टेस्ट, टेस्टी लग रहा है, यस, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो पॉजिटिव थॉट है कि नेगेटिव थॉट है? यमी यमी ना, यस, पॉजिटिव थॉट है। अगर हमने कहा कॉकरोच, बहुत गंदा लग रहा है, लग रहा है ना, लिजर्ड, कॉकरोच, एग्जाम कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है ना? एग्जाम तो मेरे को अच्छा ही लगता था वैसे। ठीक है, बहुत गंदा। एग्जाम देने में तो मजा आता है, एग्जाम देने में तो मजा आता है। तो हर जगह अलग अलग होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, किसी को लौकी की सब्जी अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती। तो हमारा ये जो लॉ है ये सिर्फ हमारे लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, वी कैन नॉट से कि मेरे लिए तो अच्छा है उसके लिए गंदा है, नहीं, ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे लिए। माने आप एग्जाम में
एग्जाम देने जाते हो तो मार्क्स किसको मिलते हैं? आपको ही मिलते हैं ना, कि बाजू वाले को मिल जाते हैं? वो चीटिंग नहीं कर रहा होता है, तो आपके पेपर में तो मार्क्स आपको ही मिलते हैं, राइट? यस। तो वो जो फीलिंग है, वो जो थॉट है, वो आपका थॉट, आपकी फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? वो ही आपकी लाइफ क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है? सो आई थिंक वी आर गोइंग अ लिटिल आराम आराम से, आई हैव टू स्पीड अप। सो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम मैनिफेस्टेशन क्या हुआ? सबको मतलब पता है मैनिफेस्टेशन का? Yes. नो मैम, नो नो मैनिफेस्टेशन। मैम। समवन वांट्स टू से मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जिसको पता है? जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देते हो, आप उसके लिए अच्छे थॉट्स रखते हो, तो वो ग्रेजुअली आपके लाइफ में भी आ जाता है। हाँ, ऐसा कुछ, ये आपकी बात सही है प्रेक्षा, बट क्या मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है कि वो आपके लाइफ में मटीरियलाइज हो गया, माने आपके लाइफ में आ गया, उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, जिस चीज़ को हम एनर्जी देंगे, वो हमारे लाइफ में आ जाएगी, वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। मैनिफेस्ट मतलब होता है कि वो प्रकट हो गया, वो आ गया मेरे लाइफ में, ठीक है? क्यों आएगा, कैसे आएगा? हमने पिछले स्लाइड में देखा, इट इज Manifestation is a sign that something is happening. यस, समथिंग इज हैपनिंग, माने आ गया है आपके लाइफ में, कुछ हो गया है, ठीक है? और वो क्यों हुआ है? क्योंकि हमने उस चीज़ पे एनर्जी दी है, उस चीज़ के बारे में हमने फोकस किया है, ठीक है? अच्छा, जो बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमारे मन में, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। आप ये बोल रहे हो कि उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम उनको कैसे देखें कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है? तो वो जो थॉट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर वो अच्छा थॉट है तो आप उसको एनर्जी दोगे, आप उसके बारे में सोचिए, और वो आपके लाइफ में आपको पॉजिटिविटी देगा और आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे। अगर वो थॉट आपको नेगेटिव फीलिंग दे रहा है, तो देर आर एक्सरसाइजेज विच वी आर गोइंग टू डू, कि आपको अपना ध्यान, अपना फोकस उस नेगेटिव थॉट से हटा के पॉजिटिव चीज़ में लेके आना है, ठीक है? सो वी विल लर्न टुडे ओनली कि कैसे वो हमको करना है, ठीक है? ग्रेजुअली वी विल टच ऑल द टॉपिक्स, या? तो मैनिफेस्टेशन क्या हुआ कि वो हमारे लाइफ में आ गया है, इट इज़ कमिंग इन आवर लाइफ, इट इज़ मटीरियलाइज इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है? तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अननोइंगली, नोइंगली, हम जो थॉट आते जा रहे होते हैं, कोई थॉट आ रहा है, जा रहा है, हम लोग कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर मैं सोचा, ओ गॉड, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है ये चैप्टर, कल एग्जाम है, यू नो, या परसों एग्जाम है, कैसे हम कवर करेंगे, आई हैव नॉट डन माई रिविजन ऑल्सो, व्हाट टू डू, यू नो, इफ यू आर थिंकिंग दीज थॉट्स, सो व्हाट विल हैपन? अननोइंगली, आपको जब ये पता ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या होगा? आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, एग्जाम में वो ही टॉपिक आ जाएगा, ठीक है? दिस हैज हैपेंड विद मी मैनी टाइम्स इन दी एग्जाम्स, या, एंड आई एम श्योर किसी किसी के संग भी हुआ होगा, इफ यू हैड पुट योर थॉट्स, योर एनर्जी, योर फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, या? यस। तो अब क्या हो रहा है, पहले जो लाइफ अपने आप चलती चली जा रही थी, जिस पे एनर्जी दे रहे हैं वो हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो, वो गंदा हो। अब क्योंकि हमको पता है कि हमारे लाइफ में वही चीज़ें आती हैं जिस पे हम ध्यान देते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए? पॉजिटिव थिंग्स, Good thought. यस, पॉजिटिव थिंग्स, गुड थॉट्स, उस पे हमको हमारी एनर्जी, हमारा फोकस देना चाहिए, ठीक है? तो उससे क्या होगा, कैसी चीज़ें आएंगी जो हमको चाहिए, ठीक है? क्या चाहिए वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हमको हमारा ध्यान पॉजिटिव चीज़ों पे रखना होगा। बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा ये अच्छे थॉट्स नहीं हैं, तो हम तुरंत अपना ध्यान, जैसे कितने बार अपने पढ़ने बैठे हो गए, आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको पता है एग्जाम है, आपका मन कर रहा है कुछ और करने के लिए, तो व्हाट यू डू इज यू ब्रिंग योर फोकस टू योर बुक सो दैट यू स्टडी, कि कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, यू डू दैट ना, कि आपको कुछ इतना अपना होमवर्क खत्म करना है, तो यू ब्रिंग योर अटेंशन टू योर होमवर्क, टू योर बुक्स। सेम वे वी हैव टू ब्रिंग आवर थॉट्स टू पॉजिटिव थिंग्स, ताकि हमारे लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें ही आएँ, ओके? सो नाउ व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ, हाँ, मैनिफेस्टेशन का मतलब तो डिस्प्ले नहीं होता? मैनिफेस्टेशन का मतलब डिस्प्ले नहीं हुआ है, वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि वो हमारे लाइफ में प्रकट हो गया, वो आ गया है, ठीक है? लाइक इट इज हैपनिंग, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, मैंने एक एक्ने के ऊपर इतना ध्यान दिया, मैंने एक पिंपल के ऊपर इतना ध्यान दिया कि मैंने उसको मैनिफेस्ट कर लिया, मेरे वो आ गया पिंपल मेरे पास, ठीक है? सो हम लोग को क्या करना है, कोई भी चीज़ को लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, हम लोग को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? दैट इज द प्रोसेस, दैट इज हाउ इट हैपेंस। हाउ मेनी ऑफ यू ऑर्डर थिंग्स ऑनलाइन?
मैम यस, या अगर ऑनलाइन नहीं करते हो तो अपनी मम्मा को बोला है क्या, या पापा को बोला है नहीं मुझे ये चाहिए? हाँ, आपने लिस्ट बनाई है नहीं मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये खाना है, मुझे तो ये ऐसे कपड़े पहने, मुझे ऐसे शूज चाहिए, आज स्कूल में बोला गया है ये लेके आना है। यस, या यस हाँ हाँ है। तो आपने क्या किया, आपने आस्क किया, आपने अपना जो चाहिए उस बात को आपने बोला। यू आस्क्ड, व्हाट डिड यू आस्क, कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या खेलने जाना है, आपको क्या करना है, वो आपने बोला। ठीक है, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो आप क्या करते हो, आप पूरा अच्छे से उसको सिलेक्ट करते हो दैट व्हाट इज़ इट दैट यू वांट। अगर आप आज पिज़्ज़ा खाने भी जाते हो तो आप क्या करते हो, पूरा बोलते हो ना, नहीं थिन क्रस्ट चाहिए, सॉस ऐसी चाहिए, चीज़ ऐसी चाहिए, नो मशरूम, बेबी कॉर्न, दिस दैट, पूरा आप उसको डिस्क्रिप्शन देते हो कि नहीं? या जो भी पिज़्ज़ा आ जाता है आप खा लेते हो? हम लोग नहीं ना, आप पानी भी पीते हो तो बोलते हो नहीं मुझे ठंडा चाहिए, उसमें आइस होनी चाहिए, नहीं नॉर्मल वाटर चाहिए। पानी के लिए भी हम लोग इतना स्पेसिफिक होते हैं। तो पहले तो जो हमको चाहिए हमको वो बोलना पड़ता है, हमको वो मांगना पड़ता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। अभी क्या है आपको पता ही नहीं है, आप सोचो ना, आप ऐसे ही लाइफ चलती चली जाएगी तो क्या हुआ, कुछ भी आ जाएगा, है ना। आप रेस्टोरेंट जाते हो तो आप बोलते हो आपको क्या चाहिए, आप घर में आप खाना बनता है तो भी आप मम्मा को बोलते हो कि मम्मा आज मेरे को रसगुल्ला खाना है, मम्मा आज मेरे को ना पराठा खाना है, आज मेरे को इडली खाना है, यू से ऑल दिस राइट। सो वैसे ही हमको जो अपने लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, राइट, लाइक यू माइट बी वांटिंग गुड मार्क्स, आप चाहते हो आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी ही बेस्ट फ्रेंड रहे, या आपका कोई गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, हाँ, या आप कोई एक मूवी देखना चाहते हो, या आप अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस से मिलना चाहते हो, या अपने कोई फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हो, तो ये सब आपको चाहिए, है ना। तो सबसे पहले वो हमको आइडेंटिफाई करना है दैट व्हाट इज़ इट दैट यू वांट, माने आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या आपको चाहिए, तो वो एकदम स्पेसिफिकली हमको पता होना चाहिए, है ना। इट इज़ लाइक इफ़ यू अंटिल एंड अनलेस यू से दैट, सामने वाले को कैसे पता चलेगा, है ना। इट इज़ लाइक आप गाड़ी में बैठ गए, आपने ड्राइवर को या कैब वाले को बोला ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, वो आपको कहाँ ले जाएगा। मेरे को शोले वाला वो सीन याद आ रहा है, जब तुम बताओगे ही नहीं तुम्हें जाना कहाँ है, आई एम नॉट श्योर सबने शोले देखी भी है कि नहीं देखी है, या। सो इट इज़ लाइक यू हैव टू बी, देखिए मैम, देखिए, तो आपको बताना होगा कि आपको जाना कहाँ है ना, तभी तो आपको वो लेके जाएगा। तो सेम वे यूनिवर्स हमको हर चीज़ देने के लिए रेडी है। यस अक्षिता, यू हैव अ क्वेश्चन? यस मैम। मैम अगर हमारा डिसाइड ही नहीं है गोल कि हमें करना क्या है तो हम क्या करें? तो पहले आप कितने साल के हो अक्षिता? मैम आई एम इन 9th and I'm 13 years old. ओके, सो व्हाट यू हैव अरे टू डू, चिल कर। चिल मत कर, कुछ भी चाहिए हो सकता है। इट कुड बी एज सिंपल एज कि आपको फ़ोन चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको एक स्टोरी बुक चाहिए, आपको अपने मन की बर्थडे में ड्रेस चाहिए, आप चाहते हो कि आपकी बर्थडे पार्टी ऐसी हो, ठीक है। जो कुछ भी चाहिए वो सब आपको यूनिवर्स देता है, ठीक है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स वी विल डिस्कस सम मोर अबाउट इट। तो आपको क्या करना है अक्षिता, कल संडे है, ठीक है, दिन में आप सबको एटलीस्ट आधा घंटा निकाल के एक लिस्ट बनानी है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या बनना है, आपको क्या पाना है। इट कुड बी एनीथिंग, कि आपको म्यूज़िक में शौक है, या क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको चाहिए, वो एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एज सिंपल कि आज मेरे को चॉकलेट केक खाने का मन है, ठीक है। एनीथिंग, आपको एक लिस्ट बनानी है, एक लंबी सी लिस्ट बनानी है, ठीक है। बिकॉज यू हैव जस्ट अभी तो आप स्कूल में हो, इतनी सारी चीज़ें जगह घूमने की होंगी जहाँ आपको घूमने जाने का मन हो, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए हैं, है ना, राइट। आप चाहते हो कि आपकी मम्मी आपको ज़्यादा प्यार करे, ठीक है, या आपको बहुत प्यार करे, आपको ये गिफ्ट दे, आपके टीचर आपको लाइक करें, आपके मार्क्स अच्छे आए। देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स दैट यू वांट, या आपको कोई बुक पढ़नी है, आपको कोई फेवरेट कलर, अपने कोई शूज़ चाहिए हैं, या एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, वो आपको अपने लिस्ट में लिखना है, ठीक है। एवरीवन हैज़ दिस रजिस्टर या नोटबुक, जो भी आप उसको बोलो, लॉन्ग कॉपी या लॉन्ग नोटबुक, कैन यू सी इट इज़ इन माय हैंड, या हाँ, सबके पास वो होनी चाहिए। थोड़ी छोटी है। कितनी छोटी है, बस पॉकेट डायरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी छोटी मतलब A5 साइज की है, इतनी बड़ी, तो यस मैम, या ठीक है, उसमें आपको एक लंबी सी लिस्ट बनानी है दैट व्हाट इज इट दैट यू वांट, ठीक है। यू आर आस्किंग समथिंग, आस्किंग फॉर समथिंग, वो पूरी एक लिस्ट बनानी है लंबी सी, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अभी हम लोग ये सिर्फ स्टेप समझ रहे हैं, लेकिन आपका काम क्या है कल के लिए, आपको सिर्फ एक लिस्ट बनानी है दैट व्हाट इज इट दैट यू वांट, या
नेक्स्ट इज बिलीव। ये क्रिएशन, ये मैनिफेस्टेशन में ये है, अपन क्या सोचते हैं, अरे मैम ने ये मेरे से कॉपी मांग ली, हाँ, और मेरे पास तो है नहीं, फिर मेरे को तो पनिशमेंट मिल जाएगा, फिर मेरे को क्लास के बाहर भेज देंगी मैम। डू यू थिंक लाइक दिस? जब आप ऐसा सोच रहे होते हो कुछ भी नेगेटिव, ऐसा मन में थॉट आता है? No, ma'am, I live in present. वेरी गुड, वेरी नाइस। हमेशा, पूरा टाइम? या वेरी गुड, देन इट इज वंडरफुल। बट मेनी ऑफ अस, मोस्टली, वेरी गुड, बट मोस्टली क्या होता है कि जब हम ऐसा, अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, ऐसा तो नहीं, वो उसके संग बैठी हुई है, उसके संग गई हुई है, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे से आगे, आगे से आगे हम लोग नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं, ठीक है। ऐसे ही पॉजिटिव भी सोचते हैं, बट अक्सर जब अपन नेगेटिव में ऐसे चले जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे मन में हम उस चीज़ को दोबारा से जी रहे होते हैं, ठीक है। वापस से उन चीज़ों को याद करके, जो अभी हुई भी नहीं है, उनके बारे में सोच सोच के हम लोग नेगेटिव हो रहे होते हैं। तो जब नेगेटिव होंगे तो लाइफ में नेगेटिव चीज़ें आएंगी, जो जिसके बारे में हम डर रहे हैं, जहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, जिस पे फोकस दे रहे हैं, वो आने लगता है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले तो हमको समझना है कि हमको चाहिए क्या। नेक्स्ट क्या करना है, वी हैव टू प्रिटेंड कि वो हमको मिल गया है, ठीक है। तो जो भी हमको चाहिए वो एक्चुअल में क्या है, आपकी ड्रीम है, डिज़ायर है, वांट है। तो आपको सिर्फ लिस्ट बनानी है कि क्या चाहिए। नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग अभी आप सिर्फ लिस्ट बनाओ, हम ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि क्या करना है, देन ग्रेजुअली वी विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। फिर क्या करना पड़ता है, अगर हमने आपसे कहा कि वाओ डेयरी मिल्क है, कितना अच्छा लग रहा है ना, पर्पल कलर की सिल्क है, उसको आपने खोला, गोल्डन कलर का रैपर है, एंड यू आर टेकिंग अ बाइट, इट इज़ जस्ट मेल्टिंग इन योर माउथ। क्या हुआ, यू आर प्रिटेंडिंग कि आपके पास वो चॉकलेट है, आप उसको फील कर रहे हो, आप उसको इंजॉय कर रहे हो, है ना। सो यू हैव टू बिलीव दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। जब हम ऐसा बिलीव रखते हैं, हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पूरा उसको मन में इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपकी टिकट्स बुक हुई हैं, सपोज यू आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे टू गोवा और कश्मीर और एनीवेयर, आपकी टिकट्स बुक हुई हैं, बट आप पूरा इमेजिन कर लेते हो, हाँ फ्लाइट में हम इसके पास बैठेंगे, हाँ, या हम ऐसे बस जर्नी में जाएंगे तो ऐसा रहेगा। आप पूरा उसको मन में सोच लेते हो, और अभी सिर्फ टिकट्स ही हुई हैं और आपको पूरा विश्वास है कि आप तो जा ही रहे हो, हाँ। तो बिल्कुल वैसे ही करना है, वी हैव टू बिलीव and act as if वो हमको already मिल गई है। Okay? Yes, you have a question. You have raised your hand. मैम आई एम सेइंग, जैसे कि हम लोग अगर गंदी चीजें सोचते हैं, अगर मैम वही चीज होने लग जाए तो मैम क्या करेंगे उसमें? बिल्कुल, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ही हम समझेंगे कि जो भी थॉट्स, गंदे या पॉजिटिव, कोई भी थॉट्स हों, उनको हमको चेंज कैसे करना है। पहले तो अगर हमने ये समझ लिया कि ये थॉट अच्छा नहीं है, तो हमको क्या करना होता है, तुरंत अपना ध्यान उस चीज़ में लगाना है जो अच्छी है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट अभी उसके बारे में बात करने वाले हैं कि वो कैसे करना है। इट इज़ कॉल्ड अ मूड शिफ्टर, या सो वी विल टॉक अबाउट दैट, वो हम लोग अभी बात करेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस, देन आई विल टेल यू क्या करना है। कि हमारे थॉट्स के बारे में पहले हम अवेयर होंगे, और उसको चेंज करने के लिए हमको एक लिस्ट बनानी है कि क्या चीज़ें करना हमको अच्छा लगता है। ओके, जैसे विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो अभी क्या किया, हमने लिस्ट बनाई कि क्या हमको अच्छा लगता है, जो हमको चाहिए, सॉरी वी हैव मेड अ लिस्ट कि हमको क्या चीज़ें चाहिए, हाँ। नेक्स्ट हमको प्रिटेंड करना है कि एज इफ वो हमको मिल गया है। कैसे आप प्रिटेंड करोगे, जैसे सपोज कोई लड़की है या कोई एक लड़का है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, हाँ, आप चाहते हो कि वो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन जाए, तो आप क्या करोगे, पहले आपने लिखा कि यस शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। फिर आपने उस बिलीव कैसे किया, आप मन में सोच रहे हो आई एम सो हैप्पी शी इज़ कॉलिंग मी, यू नो आई एम सो हैप्पी दैट वी आर गोइंग टू सी मूवीज, दैट वी आर गोइंग ऑन अ डेट। आप उसको मन में इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, और आपको विश्वास है कि वो हो गया, ठीक है। जनरली what if our parents read that? What if our parents मैम ये होगा I could not hear it, sorry Kshitij, please repeat. Ma'am, what if our parents said that? That would be like so embarrassing and like. I am not telling you to, you know, make a parents read it, okay? अभी आपको खाली इमेजिन करना है, ठीक है, कि आप उसके साथ मूवी जा रहे हो, या आप अगर आपकी वो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, यू आर गिविंग हर गिफ्ट, शी इज गिविंग यू गिफ्ट, यू नो, आपको वो सोचना है, ठीक है, अभी सोचना है खाली, ठीक है। मैम ये हो पाएगा, हाँ हो पाएगा,
तो So true. पहले होगा कि नहीं होगा वो हम लोग बाद में देखते हैं ना, पहले अभी हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं, ठीक है। सो आई एम टेलिंग यू, मैंने अपनी साइट्स ऐसे अट्रैक्ट की हैं यही सोच के कि यहाँ पे तो मेरा ही काम चल रहा है। आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, आई सेड ना कि इस एड्रेस में तो मेरा ही काम चल रहा है, ये साइट तो मेरी ही है, ठीक है। तो वैसा सोच सोच के वो मेरे को काम मिल गया। लेकिन क्यों मिला? क्योंकि मेरे थॉट्स पॉजिटिव थे, मेरे थॉट्स प्योर थे, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट कि किसी को हम बुद्धू बनाने के लिए लिख रहे हैं ये, इट इज़ बिकॉज आई वॉन्टेड इट दिल से, और हम उसको पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहे थे, ठीक है। अभी पेरेंट्स के पास तो कैसे पहुंचेगा? आप अपने मन में सोच रहे हो, अभी आप लिस्ट बना रहे हो खाली, या सो यू मैम जस्ट आपके यस यस अभी ओके सो नथिंग मैम। नथिंग, ओके कूल। सो आपको फिर क्या होगा? देन थर्ड स्टेप इज रिसीव। कैसे आप रिसीव करोगे उसके? कोई चीज़ आपको मिल जाएगी तो आपको कैसा लगेगा? वोंट यू फील हैप्पी? कि जो अभी हम लोग ये कैडबरी सिल्क की बात कर रहे थे, अगर आपको वो मिल गई, या अभी आपको कल ही किसी ने वो गिफ्ट दे दी, हाउ विल यू फील? और आपने अपने लिस्ट में लिखा था कि यू वांट टू हैव अ कैडबरी डेयरी मिल्क, हाउ विल यू फील? वेरी नाइस, वेरी हैप्पी। या इट कुड बी आपने लिखा है कि आपको एक फ़ोन चाहिए, या आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, या आपको बेस्ट आप चाहते हो कि आपका नो यू आर द बेस्ट व्हाटएवर रनर, स्पोर्ट्समैन, जो भी आप करना चाहते हो, योर डांस इज़ द बेस्ट, आपने कुछ गाना गाया, आपको उसके लिए कुछ अवार्ड मिला, तो वो आपकी ड्रीम थी, आपने विश्वास किया, वो आपको मिल गया। और जब वो मिल जाएगा आपको कैसा लग रहा है, वो फीलिंग आपको अभी करनी है, ठीक है। ये नहीं कि अरे हम तो छुट्टी पे जा रहे हैं तो पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएगी, तो मार्क्स कैसे आएंगे, मैंने तो लिखा था कि मुझे बेस्ट परफॉर्मर का वो अवार्ड चाहिए है, या यू नो लाइक सर्टिफिकेट चाहिए है, बट मैंने तो उसके बारे में कुछ किया ही नहीं, कैसे होगा, ठीक है। तो ये थॉट कैसा है? ये थॉट नेगेटिव है। तो हमको पूरा टाइम ये सोच के रहना है कि ये चीज़ तो मुझे मिल गई है, एंड आई एम सो हैप्पी कि व्हेन आई एम हैविंग दैट चॉकलेट इट इज़ जस्ट ऑसम, एंड आई एम शेयरिंग इट विद समवन, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि वो मुझे वो मिल गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको फॉलो करनी होती है। पहले लिस्ट बनानी होती है, फिर विश्वास रखना होता है कि हमको मिल गई है, सोचते रहना है कि हाँ ये तो मेरी है, मैं तो बेस्ट स्टूडेंट हूँ, सब टीचर मुझे प्रेज कर रही हैं, ठीक है। जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसके बारे में आपको प्रिटेंड करना है कि वो आपको मिल गया, मन में प्रिटेंड करना है, हाँ। या अपने आसपास वाले लोगों को आप बोल रहे हो कि हाँ मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो मिल गया है अवार्ड, यू नो, यू हैव टू pretend like that. And when you are pretending you have to feel genuinely happy, you have to feel very good as if you have already got it, okay. So this is, and then when you have actually got it, what do you say? You are so grateful, you are so thankful कि आपको वो चीज़ मिल गई है, ठीक है। सो अच्छा, वो चीज़ दे कौन रहा है? हाँ, भगवान। एग्जैक्टली। तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू द सुप्रीम पावर, टू भगवान जी की यस मुझे वो चीज़ मिल गई है, आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, टू दैट सुप्रीम पावर, ओके। सो वी हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ हमारे थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, जो चीज़ हमको चाहिए वो मेरी है। तो क्या हुआ? आप क्या हुए? आप एक डायरेक्टर हुए, आप एक क्रिएटर हुए, है ना, क्योंकि आपके थॉट से वो चीज़ आपके लाइफ में आई है। वेदर इट्स योर गर्लफ्रेंड, वेदर इट्स योर गुड मार्क्स, वेदर इट्स योर पिंपल, वेदर इट्स योर यू नो बैड मार्क्स, या मम्मी से डांट पड़ी है, कुछ भी जो हमारे लाइफ में आया है वो मेरे थॉट से आया है, मेरी फीलिंग से आया है। तो क्रिएटर कौन हुआ? हम हुए। आपने इतनी सारी मूवीज देखी, अभी लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी है? भूल भुलैया, तारे जमीन। जुग जुग जियो। तारे ज़मीन पर रब भी देखी लेटेस्ट, ओके ठीक है, वेरी नाइस। तो जब ये मूवी बनी थी आपको क्या लगा? सब लोग एक दिन इकट्ठे हो गए कि चलो आज मूवी बना लेते हैं, आज ही शूटिंग कर ली, आज ही शॉपिंग करके ले आए, ऐसा होता है? नो ना, कैसा होता है फिर? हम पहले से डिसाइड होता है कि बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है ना। कितना प्रिपरेशन होता है। एक जन स्टोरी लिखता है, ठीक है, एक जन डायलॉग लिखता है, एक जन डायरेक्ट करता है मूवी, एक जन सब पहले तो डिसाइड करता है कौन कौन रोल क्या क्या प्ले करेगा, है ना। तो एक जो डायरेक्टर होता है उसके मन में पूरा एक सीन चलता है पहले, राइट, कि मुझे ऐसी मूवी चाहिए, ये उसमें एक्टिंग करेगा, ये डायलॉग होगा, ये गाना होगा, ये म्यूजिक होएगा, है ना। तो वैसे ही जैसे वो डायरेक्टर एक मूवी बनाता है, हम सब अपनी लाइफ बना रहे हैं, ठीक है। ईच कैसे बना रहे हैं? हमारे थॉट से, हमारी फीलिंग से, हम जैसा सोचते हैं वैसा बनता चला जाता है, ठीक है। तो अगर मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स हैं तो मेरी मूवी कैसी बनेगी? फ्लॉप मूवी बनेगी, है ना। क्योंकि किसको चाहिए कि हमारी लाइफ सैड होए? नहीं चाहिए ना। तो हमको कैसे थॉट्स रखने हैं? पॉजिटिव, हैप्पी, गुड थॉट्स रखने हैं ताकि हमारी लाइफ भी वैसी ही बने। हाँ, कौन सी मूवी? ब्लॉकबस्टर।
यस, वेरी गुड अभी, ब्लॉकबस्टर टाइप की मूवी बने, ठीक है। तो हाउ डू वी डू दैट? तो पहले हम ये समझ गए थे ना, थॉट्स हैव अ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, सपोज आई वांट कि मेरे को एक बॉयफ्रेंड चाहिए सपोज, या तो मेरे को थॉट्स कैसे रखने हैं? यस, हमको आई एम सो हैप्पी कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड, हम उसके संगे मूवी जा रहे हैं, वो मेरे को गिफ्ट दे रहा है, हम उसको गिफ्ट दे रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओवर द फोन। हम ये तो सपने आते थे। सपने नहीं चाहिए यहाँ पे, सपने तो आ गए कि बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स से अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, गिफ्ट चाहिए, ठीक है, ये तो सब सपने हैं। लेकिन उसको हम क्रिएट कैसे करें, ठीक है, उस ड्रीम को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करें, उस चीज़ को पॉजिटिव थॉट्स देके, ठीक है। अगर हमने ऐसे सोचा, ओ हो अब तो इस मेरी एज में कहाँ मुझे बॉयफ्रेंड मिलेगा हैंडसम सा, फिट सा, अगर हमने ऐसा सोचा तो ये पॉजिटिव थॉट है कि नेगेटिव थॉट है? टेल मी। नेगेटिव। तो मुझे मिलेगा? और अगर मिलेगा तो कैसा मिलेगा? अनफिट, अनरोमांटिक, वाहियात तो नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक है, डिफरेंट टाइप का मिलेगा, जैसा हम नहीं चाहते वैसा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट्स और फोकस मेरा कहाँ जा रहा है? उस चीज़ पे जो हमको नहीं चाहिए, है ना। अगर हमने अभी बोला एवरी वन ऑफ यू क्लोज योर आइज, यस क्लोज योर आइज प्लीज, या, एंड डू नॉट थिंक ऑफ अ वाइट पीकॉक, यू आर नॉट टू थिंक ऑफ अ वाइट पीकॉक, ठीक है। क्या आया सबके मन में? वाइट पीकॉक। वाइट पीकॉक। वाइट पीकॉक आ गई ना, जबकि मैंने तो कहा था डू नॉट थिंक ऑफ अ वाइट पीकॉक। फिर क्यों सोचा आपने? हाँ बोलिए। आप बोल रहे थे क्योंकि आपने वो वाइट पीकॉक मेंशन कर दिया। क्योंकि आपको वर्ड को यूज किए थे। एग्जैक्टली। तो क्या होता है, यूनिवर्स या भगवान जी या सुप्रीम पावर, वो क्या बोलते हैं, उनको नो नहीं सुनाई देता है, ठीक है। आपने जिसको एनर्जी दी, ठीक है, हम तो बोल रहे थे डू नॉट थिंक, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप बोलते हो नो आई डोंट वांट अ पिंपल, आई डोंट वांट एग्जाम्स, आई डोंट वांट जो भी आपको नहीं चाहिए, उस पर अगर आप फोकस दे रहे हो, उस पर आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो नो डोंट, लेकिन आपकी ध्यान कहाँ जा रहा है? आपके मन में क्या आ रहा है? वाइट पीकॉक, एग्जाम, एक्ने, फाइटिंग, स्कोल्डिंग, इन सब चीज़ों पे ध्यान जाता है, तो वो ही हमारे मन में आता है और यूनिवर्स को वो ही दिखाई देता है और वो ही हमारे लाइफ में आ जाता है, ठीक है। तो कल आपको ऑब्जर्व करना है, एवरी वन ऑफ यू, कि आपके मन में थॉट्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। वो थॉट्स आ रहे हैं जो नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है? तुरंत अपने थॉट्स बदलने हैं, उस पर ध्यान लगाना है जो चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर थॉट में एक फ्रीक्वेंसी होती है। तुरंत सबके मन में वाइट पीकॉक आ गई, तुरंत सबके मन में कॉकरोच आ जाता है, तुरंत सबके मन में पुचका आ जाता है, ठीक है। जो बोलते हैं वही हमारे मन में इमेज आती है और उसकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स कैच करता है और हमारे लाइफ में भेज देता है, ठीक है। सो वी हैव टू फोकस ऑन आवर थॉट्स। यस करण। मैम अगर हमारे मन में बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, फिर उनमें से कौन चूज करें? हाँ, कैसे हमने बात की कि थॉट्स जो पॉजिटिव होते हैं वो हमारे को अच्छी फीलिंग देते हैं, ठीक है। यानी कि वो पॉजिटिव थॉट है और उसके बारे में आप और सोच सकते हो, ठीक है। इट इज़ लाइक अगर आपको चाहिए हैं वाइट नाइकी शूज़ या वाइट एडिडास शूज़ या कुछ भी, आपको आप बताओ आपको क्या चाहिए। हम नहीं देंगे, यूनिवर्स देगा, बट जस्ट टू डिस्कस ऑन द टॉपिक। बताओ करण, आपको क्या चाहिए? मैम जैसे 2-3 चीजें इकट्ठी चाहिए, फिर 2-3 चीज कोई बात नहीं, यूनिवर्स तो जो चाहिए सब मिलता है, यूनिवर्स के पास से सब कुछ मिलता है। मैम एक टी शर्ट चाहिए, चलो कौन सी कलर की चाहिए? वाइट टी शर्ट चाहिए, उस पर कुछ प्रिंट होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, स्ट्राइप्स होनी चाहिए। हाँ, स्पोर्ट्स टी शर्ट चाहिए, ठीक है। तो अब जो स्पोर्ट्स टी शर्ट चाहिए, आप सोच रहे हो कि वाओ कितनी अच्छी टी शर्ट है, उसमें हम कितने स्मार्ट लग रहे हैं, एवरीवन इज सेइंग कि वाओ कितने अच्छा है। तो ये कैसे थॉट्स हैं? पॉजिटिव थॉट्स हैं। तो आपको चाहिए क्या? आस्क में क्या हुआ? वाइट टी शर्ट। बिलीव आपने क्या किया कि यस मिल गई है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको पता है और आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लोग उसको आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये हो गया बिलीव एंड आप ग्रेटफुल हो कि आपको मिल गई, ये हो गया रिसीव। ऐसे हमको वो चीज़ मिलती है। आपका क्वेश्चन था कि थॉट्स तो बहुत सारे आते हैं, उसमें से आप कैसे पॉजिटिव थॉट चूज़ करो, ये था ना आपका क्वेश्चन, या? तो अगर आपको वो थॉट जैसे ही मन में आया, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको
अच्छी फीलिंग आ रही है, आपको खुशी हो रही है, यानी वो अच्छा थॉट है। तो कल हम लोग सिर्फ इस पे फोकस, कल से सिर्फ हम उस पे फोकस करेंगे कि वो पॉजिटिव थॉट है कि नेगेटिव थॉट है, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो ही हमारी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत सारे थॉट्स आते हैं सुबह वगैरह, जो सोते हैं कि नहीं सोते हैं, इसको फ़ोन करें उसको फ़ोन करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मन में आती रहती हैं, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट होती है, जो सबसे पावरफुल होती है, उसी से मेरी लाइफ बनती है, ठीक है, उसी से हम सबकी लाइफ बनती है, ठीक है। तो व्हाट यू थिंक अबाउट द मोस्ट विल अपीयर इन योर लाइफ, नॉट एज योर लाइफ, एज योर लाइफ ऑल्सो, वो ही हमारे लाइफ में आता चला जाता है। ओके, यस दक्ष, यू हैव अ क्वेश्चन? यस मैम। राइट नाउ मतलब लगता है अभी तक बात कर रहे थे कि हमें चाहिए, हम अपने लिए मांग रहे हैं, लेकिन सपोज अगर हम किसी और के लिए मांगते हैं, सो विल दैट वर्क? किसी और के लिए क्या मांगते हैं? पहले दक्ष आप like as in if I'm wishing ki I hope my friend gets into this college, or I hope my friend gets good grades this time, डेफिनेटली इट विल वर्क। लेकिन क्या होता है, क्या होता है जब हमारे पास पैसे होंगे, ठीक है, वो हम लोग आगे अभी हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, जब मेरे पास पावर आएगा तभी हम किसी और को कुछ दे पाएंगे, है ना। तो वो पावर कैसे आएगा, वो हम लोग ग्रैटिट्यूड से वो पावर पहले इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अगर हमारी विश इतनी स्ट्रांग है, इतनी पॉजिटिव है, अगर वो कोई पॉजिटिव थॉट है, किसी के अच्छे के लिए है, तो वो भी सच हो जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या होगा, हमारे पास वो, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो, ठीक है, आप गेम खेल रहे हो, हाँ, आपको 4 लाइफ मिली है, लेकिन आपको बीच बीच में पॉइंट्स इकट्ठे करके कुछ वेपन्स देने पड़ते हैं, कुछ पावर लेना पड़ता है। हाउ मेनी ऑफ यू प्ले वीडियो गेम्स? पहले तो ऐसे ही होता था, अभी भी यही होता है ना, दैट यू कीप ऑन प्लेइंग, यू कीप ऑन मूविंग ऑन टू द हायर लेवल्स एंड यू कीप कलेक्टिंग, यू नो, वेपन्स, पावर, दिस दैट एंड लाइफ, है ना, तभी आप उसको और यूज कर पाओगे। तो जितने पॉजिटिव थॉट्स हमारे हैं, वी कैन ऑलवेज ऑलवेज विश वेल फॉर अदर्स, प्रोवाइडेड वी हैव दैट पावर। वरना क्या होगा, अभी हमने पावर इकट्ठा नहीं किया है, हमने वो पैसे इकट्ठे नहीं किए हैं, एंड वी आर वांटिंग गुड फॉर अदर्स, तो हमको लगेगा ये तो हुआ नहीं, इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। नहीं, इट वर्क्स ईच टाइम, बट वी हैव टू हैव दैट पावर। ओके, सो इज इट क्लियर दक्ष? वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू गेट दैट पावर, कि हम हमारे लिए भी जो चाहिए वो कर लें और सामने वाले के लिए भी वो कर लें। या यस मैम, या थैंक यू। या गुड, थैंक यू। यस नमन, यू आल्सो हैव अ क्वेश्चन? यस मैम। मैम आई वांट टू से दैट, मैम क्या बोलते हैं, अगर हम कुछ सोचते हैं मैम, तो वो हो सकता है कि वो ना भी पूरा हो, पर मैम क्या बोलते हैं, वो क्या बाद में पूरा हो सकता है वो विश? नहीं, वो डिपेंड करता है हमको कितना विश्वास है उसके ऊपर, ठीक है, और कितने बार यूनिवर्स डिसाइड करता है कि हमने उस थॉट को कितना पावर दिया है, ठीक है। हम उस फ्रीक्वेंसी पे, इट्स लाइक आपने रेडियो पे वो चैनल लगाया, हाँ, यू पुट ऑन दैट, यू नो, सपोज 98.3 FM लगाया, हाँ, और आजकल तो चलो डिजिटल है, बट पहले ऐसे ऐसे होता था, कहीं नेटवर्क टावर टूट गया, कुछ हुआ, आपने जल्दी से उसको टर्न कर दिया, तो क्या वो फ्रीक्वेंसी कैच होएगी? नहीं होएगी, वो थोड़ी देर के लिए रहेगी, तो आप गाना तो सुन नहीं पाओगे। तो जितना ज़्यादा हम उस फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे, तो तभी वो हमको हमारे लाइफ में मिलेगा। इट्स नॉट दैट कि हमने उसको टच किया और हमने चैनल बदल दिया, वो फिर भी वो गाना आता रहेगा, नहीं ना। यू हैव टू स्टे ऑन दैट फ्रीक्वेंसी टू लिसन टू दैट सॉन्ग ऑन दैट रेडियो, और दैट न्यूज़, और दैट, यू नो, कमेंट्री ऑन दैट रेडियो, तभी वो हमारे लाइफ में आता है। जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे बहुत देर तक बने रहते हैं, तब वो जाके हमारे लाइफ में आता है। ओके, तो क्या है, जो हमारी ड्रीम है वो सपोज 98.3 FM है, हाँ, तो जब जितनी देर तक हम 98.3 पे ट्यून करके रखेंगे, उतनी देर तक वो हमको गाना सुनेगा, तभी वो हमको गाना सुनेगा। या सो एवरीथिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी। आपने पढ़ा है ना साइंस में, एवरीथिंग इज अ मैटर, पढ़ा आपने? एवरीथिंग इज एनर्जी। यस, तो हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ मैटर है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे थॉट्स भी एनर्जी हैं, या तो जब हमारी ये एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन मैच होता है, तभी वो हमारे लाइफ में आता है। ओके, तो इसीलिए उन्होंने कहा है, इस यहाँ पे हमने ये लिखा है, योर प्रीडोमिनेंट थॉट, माने जितना ज़्यादा आप उसके बारे में सोचोगे पॉजिटिविटी से, ठीक है, ये नहीं कि टेंशन, ओ हो कल एग्जाम ना हो जाए, ओ हो कल ये वाला क्वेश्चन नहीं आ जाए, ये कैसा है, नेगेटिव है। मेरा प्रीडोमिनेंट थॉट क्या है, एग्जाम का वो क्वेश्चन, वो वाइट पीकॉक, वो पक्का आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही हम अपनी लाइफ बनाते जाते हैं, जिस पे हम थॉट, अब जिस थॉट पे हम एनर्जी दे रहे हैं, फोकस दे रहे हैं, वैसे ही वो मेरे लाइफ में आती चली जाएगी। ओके, इट्स लाइक, आई टेल यू, आज ही था
अच्छा ठीक है, आई टेल दैट टुमारो, आज का सेशन हो जाए आज के लिए, देन आई शेयर दैट विद यू टुमारो कि एक्चुअल में आज मैंने अपने लाइफ में ऐसे एक नेगेटिव थॉट दे के कैसे उसको मैनिफेस्ट कर लिया. ओके, सो वी विल टेक सम क्वेश्चंस आफ्टर 10 मिनट्स, बिकॉज क्या है, अदरवाइज आज का हमारा सेशन नहीं जाएगा. देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू डू टुमारो. या सो हमने ये बात कर ली. अच्छा, फीलिंग्स आर योर मूडोमीटर टू चेक योर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा थॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये किससे पता चलता है? मेरी फीलिंग से. अगर मेरी फीलिंग कोई चीज़ के बारे में अच्छी आ रही है, ठीक है, इट्स इफ आई एम थिंकिंग ओ हो करेले की सब्जी, मैंने अच्छी फीलिंग नहीं है, तो दैट इज़ माई मूडोमीटर. मेरी फीलिंग इज टेलिंग मी कि ये पॉजिटिव थॉट है या नेगेटिव थॉट है. उससे मेरे को पता चलेगा कि मेरे लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी कि नेगेटिव चीज़ें आएंगी. ओके, तो हमको पता कैसे, अभी जैसे आपने बात की ना कि थॉट नेगेटिव है, तो हम उसको चेंज कैसे करें? उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि मुझे क्या खुशी देता है. ठीक है, क्या करने से हमको अच्छा लगता है. हाँ, इफ़ आई आस्क यू, हाँ, whom should I ask? दक्ष, आपसे ही पूछते हैं, व्हाट मेक्स यू हैप्पी? The fact that I'm alive. No, then you are always happy. You're never sad. Yeah, you're never bored. You're never angry. Is that it? Technically, yeah, I'm never sad. Never. But you, from your voice, it seems that ना थोड़ा सा ना enthusiasm और चाहिए. Happiness आवाज से वो missing लग रही है. Yeah. So doesn't puchka give you happiness? Yeah. Being with your friends give you happiness. Watching a movie gives you happiness. Listening to songs make you happy or positive. Yeah. Watching a cricket game. I don't know. आपको क्या अच्छा लगता है? लाइक आई टेल यू, मुझे क्या अच्छा लगता है. आई लव वॉचिंग फ्रेंड्स. आई नो इतना पुराना है, बट आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स एंड आई लव वॉचिंग इट. I love it too. वेरी गुड. कपिल शर्मा देखना हमको बहुत अच्छा लगता है. मैंने उसको देख के लगता है कि बस हंसते ही रहो ना. इट्स लाइक देयर आर सम थिंग्स व्हिच आई लव वॉचिंग एंड दे मेक मी हैप्पी. तो वैसे ही आपको क्या अच्छा लगता है? लाइक आई लव ईटिंग पुचकास. ओके, आई लव वर्किंग आउट. आई लव रनिंग इन द ग्राउंड. मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. हाँ, तो वैसे ही आपको क्या, आई ऑल्सो लव लिसनिंग टू म्यूजिक. ओके, सॉफ्ट अरिजीत सिंह वाले म्यूजिक, या कभी मन करता है लव यू जिंदगी टाइप के म्यूजिक. ठीक है, तो आपको क्या अच्छा लगता है? तो कल हमको ये पता करना है, लिस्ट बनानी है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी. ठीक है, कितने जनों हमको पता ही नहीं है. इट कुड बी जस्ट प्लेइंग विद योर पेट डॉग और प्लेइंग अ गिटार. हाँ, या कलरिंग अच्छी लगती है आपको, या आपको आपका कोई बर्ड है, आपके कोई पैरट हैं या लव बर्ड्स हैं, उनसे बातें करना अच्छा लगता है. या यू जस्ट लाइक टॉकिंग टू योर मॉम और डैड और योर फ्रेंड्स. या और यू जस्ट लाइक सर्फिंग. हाँ, या क्या अच्छा लगता है? यू लाइक रीडिंग. हाँ, क्या अच्छा लगता है? क्या आपको खुशी देता है? इट्स लाइक यू जस्ट वांट टू गो होम एंड प्ले क्रिकेट. या और यू जस्ट वांट टू गो एंड प्ले विद योर फ्रेंड्स इन द ग्राउंड. क्या अच्छा लगता है? व्हाट मेक्स यू हैप्पी? वो डिसाइड. जब आप अच्छे हैप्पी रहते हो तो आप कैसी फीलिंग्स में हो? यू आर इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. यू आर पॉजिटिव. सो व्हाट इज हैपनिंग? जितना देर आप कपिल शर्मा देख रहे हो, या स्केचिंग कर रहे हो, या डांसिंग कर रहे हो, या बेकिंग कर रहे हो, ओके, या जस्ट आप अपनी वार्डरोब भी ठीक कर रहे हो. ओके, आई डोंट नो कैसे बच्चे लोगों को नहीं अच्छा लग सकता है. मुझे तो कमी पसंद है वार्डरोब ठीक करना, ड्रॉर ठीक करना. ठीक है, लाइक मॉम्स आर, कैसे तुमने अपना रूम बना के टाइडी इट अप. हाँ, तो कितने लोगों को लेकिन अच्छा लगता है. दे वॉन्ट थिंग्स प्रिम एंड प्रॉपर. तो आपको क्या अच्छा लगता है, वो एक लिस्ट बनानी है. ठीक है, वॉट मेक्स यू हैप्पी. सो आई वॉन्ट 2 लिस्ट फ्रॉम यू. 1, वॉट डू यू वॉन्ट. आपकी ड्रीम क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है? क्योंकि जब तक आप रेस्टोरेंट में जाके बोलोगी नहीं कि आपको क्या खाना है, आपके सामने क्या आएगा? क्या आएगा आपके सामने? खाली पानी का ग्लास आ सकता है. बस पानी का ग्लास भी नहीं, बस पानी का ग्लास आता. तो आप लोग, पानी तो मैं घर में भी पी सकती हूँ, राइट? तो आप पानी पीने वहाँ क्यों जाओगे? या सो यू हैव टू राइट व्हाट डू यू वांट, बिकॉज दिस यूनिवर्स इज लाइक अ जीनी. वो आपको हर चीज़ देना चाहता है, प्रोवाइडेड आप उससे मांगो, है ना? जब तक अलादीन उससे मांगता नहीं है, क्या जीनी उसको देता रहता है? उसको सब पता है इसको क्या चाहिए. क्या वो उसको देता है? हाउ मेनी यू वॉच दैट विल स्मिथ वाला मूवी? यस, या आपने नहीं तो आपने कोई एनिमेशन कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा. वो जीनी तब तक उसको कुछ नहीं देता है जब तक वो उससे कुछ मांगता नहीं है. तो जब हम अलादीन. एग्जैक्टली. तो पहले आपको अपनी लिस्ट बनानी है. ठीक है, कि आपको क्या चाहिए आपको यूनिवर्स से. यू हैव टू मेक अ लिस्ट. सेकेंड इज यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट मेक्स यू हैप्पी. ओके, इट कुड बी लाइक कितने सारे ऑप्शंस हैं, आपको वो लिस्ट बनानी है अपनी इन योर कॉपी. व्हाट मेक्स यू हैप्पी,
हाँ, और आपको क्या चाहिए, 2 चीज़ों की लिस्ट बनानी है कि ये चीज़ें करने से आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, आपकी थॉट्स हैप्पी हो जाएंगे, यू विल बी हैप्पियर। या सो अब हम लोग को क्या करना है, दिस इज व्हाट वी हैव ना, हमने पढ़ा, हमने समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ग्रेविटेशनल जैसे। यस Ma'am, like my thoughts are like contradicting. I like my studies, but I also like wasting time on like reels and shorts, YouTube shorts and stuff. सॉरी, वेस्टिंग Like they are टाइम ऑन व्हाट? नहीं, सॉरी क्षितिज, आई कुड नॉट हियर। वेस्टिंग टाइम ऑन like short reels type YouTube shorts. Like, देखिए, व्हाट डिड यू से, वेस्टिंग टाइम? वेस्टिंग क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? टेल मी। like to spend time on it, but एग्जैक्टली तो अगर आप उसको खुद ही नेगेटिव बोल रहे हो तो ऑफकोर्स वो नेगेटिव ही है। यू शुड बी सेइंग कि मुझे अच्छा लगता है, आई एंजॉय डूइंग दैट। ओके, यू शुड नॉट बी सेइंग वेस्टिंग। एंड क्या होता है जब हमारा, ठीक है, हमारा हम लोग का एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है कि हम लोग पढ़ाई पे स्ट्रेस देते हैं टू ब्रिंग सम डिसिप्लिन इनटू आवर लाइफ, यू नो, तो उससे डिसिप्लिन आता है। तो जब आप 24 आवर्स रील नहीं बना सकते ना क्षितिज, है ना, 24 Yeah, आवर्स yeah. सो यू हैव टू डिसाइड कि येस, यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि अभी आपको पढ़ाई भी ज़रूरी है, बट यू कैन नॉट बी स्टडिंग ऑल द टाइम। You have to take out time to make your reels, and then when you make your reels and you're happy, then you'll go back and study more properly, yeah, with more attention, with more focus. So that is how you have to do. You have to make your reels, be happy, and then go back and do your studies. आप इतने रील बनाओगे तो आप खुद ही आप थोड़े दिन बाद बोर हो जाओगे। No. I don't like to make reels, but I like to watch them, like Oh, random okay. content. अच्छा, तो नहीं, देखिए, ये तो क्या होता है ना, वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि पूरा टाइम हम चॉकलेट नहीं खा सकते, पूरा टाइम हम गेम्स नहीं खेल सकते। देयर विल कम टाइम हम कि उसके बाद हम भाई फोन मम्मी को दे दे। हाँ, सॉरी, हाँ, ओके। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग आज जो बोला जा रहा है हम लोग वही करते हैं, ठीक है। वी हैव टू राइट डाउन व्हाट वी लाइक, या, एंड देन वी हैव टू राइट डाउन व्हाट मेक्स अस हैप्पी। आपको अगर रील वॉचिंग भी अच्छा लगता है तो ये क्यों हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट विल वी डू विद दीज 2 लिस्ट, ये क्यों ज़रूरी है। हाँ, आप लोगों ने, मुझे तो पता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती नहीं, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा कि क्या अच्छा लगता है। ओके, अभी आपको लग रहा है सब अच्छा लगता है, लेकिन जब आप लिखने बैठोगे आपको लगेगा नहीं, मुझे तो बस 3 ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, विच मेक्स मी हैप्पी। या, सो यू हैव टू राइट दैट डाउन। यस, यू हैव अ क्वेश्चन, अगेन यू हैव रेज योर हैंड। मैम, मैं ये पूछ रहा था कि हम लोग के पॉजिटिव एनर्जी को कौन कंट्रोल करता है? पॉजिटिव एनर्जी को हम ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। लाइक वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर माइंड, आवर बॉडी, आवर लाइफ। आप कैसे कंट्रोल करेंगे? इट इज़ लाइक ना, हम, मेरे मन में पॉजिटिव थॉट आ रहा है, हम उसके बारे में अवेयर हैं, अलर्ट हैं, ठीक है, तब क्या हो रहा है, हम इस पॉजिटिविटी को कहीं पे यूज़ कर रहे हैं। कहाँ यूज़ कर रहे हैं? उस चीज़ में जो हमको चाहिए, ठीक है। तो हम ही उसको यूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में, हम ही उसको अपने लाइफ को क्रिएट करने में यूज़ कर रहे हैं। या इफ़ आई नो आई एम पॉजिटिव, तो मुझे पता है कि मैं जो भी सोचेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे तो वो हमारे लाइफ में आएंगी। अच्छा, एक और चीज़, जब लाइक अट्रैक्ट लाइक की बात कर रहे हैं तो ये सबको ध्यान, जस्ट 5 more minutes। हाँ, आई नो इट इज़ 10 o'clock एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप सब लोग अभी भी यहाँ पे हो। 5 मिनट और लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले तो लिस्ट सबको क्लियर हो गई, 2 लिस्ट बनानी है, ठीक है। लाइक अट्रैक्ट लाइक्स में जब ये बोला जाता है तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही करनी है, क्योंकि क्या होगा, अगर आपने किसी और के लिए नेगेटिव बात सोची, क्या, कि उसको चोट लग जाए, उसके एग्जाम में मार्क्स गंदे आए, ठीक है, हाँ, उसका पेट गड़बड़ हो जाए समोसा खा के, गॉड नोज क्या क्या थॉट आ सकते हैं, तो क्या होएगा, ये थॉट कैसे हैं, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। तो ये किसको मिलेंगे? मैं किसको मिलेंगे? हमें मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो आपने बचपन में ही कभी बोला है, जो बोलता है वही होता है? या बचपन मतलब अभी तो आप छोटे ही हो, या यस, तो जो बोलता है जो होता है ना, दिस इज हाउ द लॉ वर्क्स, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अब आप बहुत सोच समझ के बोलोगे कि हाँ, वो तो है ही फैट, वो तो है ही बुद्धू, वो तो सिली है, स्टूपिड है, ठीक है, क्योंकि जैसा हम किसी और के लिए बोलते हैं वो हमारे लाइफ में ही आ जाता है, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो किसी और के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं होएगा। किसी और के लिए आप नेगेटिव थॉट रखेंगे तो वो मेरे लाइफ में ही आएगा।
ठीक है। आज तो टीचर के ना बस छूट जाए इसीलिए वो आए ना, मेरी क्लास वो हो जाए, तो ये नेगेटिव थॉट है। आपको क्लास में चाहिए कि टीचर आपको पढ़ाई इसलिए कि वो आपको एग्जाम न दें, तो उसके लिए कोई और आप रीज़न सोचो। सामने वाले का नेगेटिव सोचेंगे तो वो घूम के मेरे पास में ही आएगा, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो हम किसी और के लिए सोचते हैं वो एको होके, बूमरैंग होके, आपने कभी खेला है बूमरैंग फ्रिस्बी? वो क्या होता है, जैसे फेंकते हैं वो वैसे ही वहीं पे वापस आता है ना। तो वैसे ही जैसा नेगेटिव थॉट हम किसी और के लिए देते हैं वो हमारे ही लाइफ में वापस आता है। जैसी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फीलिंग्स किसी और के लिए देते हैं वो मेरे ही लाइफ में वापस आती हैं। तो जब आप पॉजिटिव दोगे तो क्या आएगा आपके पास? पॉजिटिव फीडबैक। Exactly. So you always should be wishing well for others. We should always be blessing others कि उनके लाइफ में अच्छा हो, ठीक है। उनके बारे में अच्छी बात करेंगे तो वो भी हमारे लाइफ में ही घूम के आएगा। Okay, so let's come back. So whatever we have learned, we are going to pen it down. Okay, so just 1 second. हाँ, तो पहले हमको क्या करनी है, हमारी एक डिज़ायर लिस्ट बनानी है, हमारी एक ड्रीम लिस्ट बनानी है कि हमको क्या क्या चाहिए, और वो एक बहुत लंबी लिस्ट होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कि हाँ एक अच्छे मार्क्स चाहिए, एक ये चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, हम एक सब गाड़ी एक बंगला बस एक गाड़ी और एक बंगला, पता है कैसी गाड़ी कैसा मैम हमें डिटेल में भी देना पड़ेगा सब कुछ? नहीं, अभी आप एक लिस्ट बना रहे हो, हम लोग डिटेल में थोड़े दिन बाद जाएंगे, ठीक है। हमको पहले एक लिस्ट बनानी कि क्या क्या आइटम चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता है आपको कितना डिटेल में चाहिए, आप उतना डिटेल में उसको लिख सकते हो, ठीक है। बट एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए, उसमें से हम लोग 3 आइटम निकालेंगे, ठीक है। या हाँ, तो तनिष्का आई विल गेट बैक टू यू। या तो हम लोग को क्या करना है, एक लंबी लिस्ट बनानी है, कल सुबह ही आप बना लेना। उसमें से 3 आइटम आपको 1 2 3 करके आइडेंटिफाई कर लेना है। इज दैट क्लियर? है ना। इट इज़ लाइक आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, उस पर हम लोग एनर्जी देंगे, है ना। वी वांट टू ट्राई इट आउट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। या सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ लॉन्ग लिस्ट, उसमें से आप 3 एडिट नहीं शॉर्ट लिस्ट करके आप निकलोगे, ठीक है। देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी आर गोइंग टू वर्क ऑन योर मूडोमीटर। वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट मेक्स यू हैप्पी। इसको बोला जाता है योर मूड शिफ्टर लिस्ट, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि आपको स्कूल में टीचर ने कुछ बोल दिया, ठीक है, या आपकी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, या घर में आपके भाई ने, बहन ने, कोई रिलेटिव ने कुछ बोल दिया, या आपका कोई सामान खो गया और आप सैड हो, आप दुखी हो, आप अपसेट हो, तब ये इसको बोलते हैं कि आपका मूड अच्छा नहीं है, यही बोलते हैं ना। उस समय अगर आपको आपका छोटा भाई या बहन है एंड उसने कुछ फनी चीज़ें की, या आपका पेट डॉग है, या आपकी किटी है एक तो कोई, हाँ, वो आपके संग मस्ती कर, यू स्टार्ट फीलिंग नाइस एंड हैप्पी, आपके थॉट्स चेंज हो जाते हैं, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। इसलिए ये मूड शिफ्टर लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट मेक्स यू हैप्पी, उसमें से टॉप 5 चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है, ओके। सो वी विल जस्ट 1 सेकेंड। या और कल पूरे दिन हमको ऑब्जर्व करना है कि मेरे थॉट्स कैसे हैं, ठीक है। अभी क्या होता था, कुछ भी आ जाता था मन में, हमको पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है, तो हम उसको आते रहते हैं जाने। जैसे ना यू बीन टू अ मेट्रो स्टेशन और अ ट्रेन स्टेशन और एन एयरपोर्ट, जो चाहे आता चला जा रहा है, जाता चला जा रहा है ना, है ना। तो वैसे ही हमारे मन में थॉट्स आते जाते हैं, जाते जाते हैं, तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं किस टाइप के थॉट्स हैं। तो कल आप पूरा दिन ऑब्जर्व करो कि आपका थॉट कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अपनी फीलिंग्स को देख के आप वो समझोगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू टुडे। एंड आपको देखना है कि पॉजिटिव थॉट्स कैसे होते हैं, माने अप्रिसिएशन, आपकी ड्रीम के बारे में, लव के बारे में, ग्रैटिट्यूड के बारे में, ये हो गए पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स कैसे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स इसके अलावा हर टाइप के थॉट्स होते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन सो फार? सो एवरीवन इज अंडरस्टूड हम लोगों को क्या करना है, 2 लिस्ट बनानी है। या एक बार आप वो नेगेटिव थॉट्स वाले पर दिखाइए ना। नेगेटिव थॉट्स हम बताना ही नहीं, बोलना ही नहीं चाहते। नेगेटिव थॉट्स क्या है? I have sent a question to you. थिंकिंग अबाउट आर क्रश इज, सॉरी, क्या आप देखिए, हम कैन आई हैव टू रीड इट अलाउड ना। देखिए, जो थॉट आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, आपको अच्छी फीलिंग दे रहे हैं, हाँ, वो पॉजिटिव थॉट होता है। अगर आप अपने क्रश के बारे में सोचो, ओ हो मेरी तो फ्रेंड बनी ही नहीं, वो तो उसके संग घूम रही है, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। तो आपको वो नहीं सोचना है,
ठीक है। अगर आपको लगता है कि येस वेरी सून इट इज़ माई बर्थडे, वो मेरे को गिफ्ट दे रही है, वो मेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, दिस इज़ अ पॉजिटिव थॉट फॉर योर क्रश, आप वो सोच सकते हो, ठीक है। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या थॉट है वो आपको अच्छी फीलिंग दे रहा है कि नेगेटिव फीलिंग दे रहा है, अकॉर्डिंगली आपको समझ में आएगा कि वो नेगेटिव है कि वो पॉजिटिव है। या सो योर थॉट एंड योर फीलिंग्स आर लिंक्ड। आपकी फीलिंग डिटरमाइन करते हैं कि वो थॉट पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है। ओके, आंसर्ड? Thank you, ma'am. थैंक यू। सो यस कनिष्का, यू हैव रेज योर हैंड। यस मैम। मैम, जो डिजायर लिस्ट बनानी है उसको प्रायोरिटी वाइज बनानी है कि आपकी जो मेन प्रायोरिटी क्या, आपको पहले सबसे क्या चाहिए जो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है? या क्या करना है कनिष्का, पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, लाइक से टुडे आई वांट टू गो टू गोवा सपोज, हाँ, टुमारो आई वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड। तो अभी तो जहाँ जहाँ जाना है हमने सब लिस्ट बना ली, ठीक है। टुमारो आई वांट माई हेयर टू बिकम थिकर हेल्थियर, आई वांट टू बिकम 60 kg, आई एम टॉल इसीलिए 60 kg बोल रहे हैं। तो मेरे को ये चाहिए, मेरे को फ़ोन ऐसा चाहिए, मेरे को क्लाइंट ऐसा चाहिए, ठीक है, मेरे को रिलेशन अच्छा चाहिए। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई कैन राइट एवरीथिंग इन दैट लिस्ट। फिर अपनी एनर्जी हम उन टॉप 3 चीज़ों पे लगाएंगे विच आई फील आर माई प्रायोरिटी। ओके, सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ लॉन्ग लिस्ट। उसमें से अभी इन 3 चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे। या यस मैम, थैंक यू। या थैंक यू। यस हनी। मैम, मेरे को एक्चुअली पूछना था कि क्या होमवर्क आपने बेसिकली दिया है? हाँ, होमवर्क नहीं है, क्या है हम लोगों का असाइनमेंट हम लोग बोलते हैं उसको। चलिए ठीक है, कि हमको क्या चाहिए, 2 थिंग्स हम ग्रुप में पोस्ट भी करेंगे। इट्स लाइक व्हाट डू यू वांट। हाँ, वांट मतलब कुछ भी, कि आप कुछ बनना चाहते हो, यू वांट टू बी अ गुड डांसर, अ गुड आर्टिस्ट, या आपको इट्स लाइक आपकी ड्रीम क्या है। हाउ ओल्ड आर यू हनी? मैम 12+। ओके, तो एज पर 12+ आपको क्या चाहिए, है ना। इट कुड बी एनीथिंग। हाँ, इट कुड बी कि येस यू वांट योर बर्थडे पार्टी टू बी ऑसम, ऐसा चाहिए। उसमें आई डोंट नो 12 ईयर ओल्ड के बर्थडे में क्या होता है, हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड टेल यू, ठीक है, कि बर्थडे पार्टी में चाहिए कि आपकी बेस्ट फ्रेंड चाहिए, कि टीचर आपको हेड गर्ल बना दें, या आई डोंट नो, उस टाइप की चीज़ें आपको लिखनी है। यू वॉन्ट योर मॉम टू टेक यू ऑन अ हॉलीडे, और और योर डैड टू गेट यू अ फोन, ऐसे कुछ भी चीज़, हाँ, वो आप अपने लिस्ट में बनाना है। एक लिस्ट बनानी है ये। दूसरी, कि क्या करना अच्छा लगता है। यू लाइक वॉचिंग एनिमेशन, यू लाइक वॉचिंग मूवीज, यू लाइक गोइंग आउट इन द गार्डन एंड प्लेइंग, यू लाइक स्टिचिंग, यू लाइक रीडिंग बुक्स, यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या अच्छा लगता है, वो एक लिस्ट बनानी। तो 2 लिस्ट बनानी है। और तीसरा क्या करना है, आपको कल ऑब्जर्व करना है कि कल आपके थॉट्स कैसे हैं, ठीक है। यू हैव टू जस्ट लेट देम बी। जो भी थॉट आ रहा है, आप देखो अच्छा ये थॉट है, ये अच्छा है कि गंदा है, वो आपको मन में अपने बस ऑब्जर्व करना है उसको, ठीक है। मैक्सिमम कितने विशेस लिखना है? जितने भी मनाए, आप लिस्ट तो बनाओ पहले, ठीक है। इट इज लाइक यूनिवर्स है, वो हर चीज देगा आपको। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। मेक अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, माने यू आर ओनली गोइंग टू रीड इट। एंड जब जैसे जैसे आप लिस्ट बनाओगे, इट शुड बी योर लिस्ट। इट शुड नॉट बी कि अच्छा मेरी कज़न के पास है इसलिए मुझे भी चाहिए, अच्छा मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास है इसलिए हमको भी चाहिए। नो, इट हैज़ टू बी व्हाट यू वांट टू हैव, व्हाट यू लाइक, वो चीज़ें लिखनी है उसमें। या ओके, या थैंक यू। एनी यस तनिष्का, यू ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन? Yes. Who said that? And we have to send the homework to you. No, पहले आप लिस्ट बनाओ, ठीक है, उसको उसमें 1 2 3 आइडेंटिफाई करो, देन लेट मी जस्ट सी, देन आई विल टेल यू कि आप शेयर करोगे। सी, आई टेल यू, आप मेरे संग शेयर करोगे अभी नहीं, जब हम बोलेंगे ना विद इन 1 or 2 days, देन आई विल टेल यू टू शेयर विद मी। या अभी आप सिर्फ लिस्ट बनाइए, ठीक है। और लिस्ट बना के क्या करना है आपको, आई विल मैसेज, आप सब लोग फोन पे मैसेज में आप लोग रिप्लाई करोगे ना ग्रुप में? या वेरी गुड। सो देन आई विल टेल यू, या वेरी नाइस। सो देन आई विल आस्क यू कि हाँ असाइनमेंट डन और नॉट, लिस्ट्स आर रेडी और नॉट, तब आप मेरे को आंसर करना। और जब मेरे को लगेगा जैसे टीचर कभी भी किसी से बोल देती है ना कि यस शो मी योर कॉपी, देन आई कैन जस्ट आस्क यू, देन यू हैव टू शो मी योर लिस्ट, ठीक है। या सो जस्ट 1 second तनिष्का, आई एम जस्ट रीडिंग योर क्वेरी। हाँ देखिए, अगर जिसका भी क्वेरी है दैट पर्सन हैज टू कम हियर,
Okay, I cannot give answers for someone else. You have to ask your question. If your friend is there, Tanishka, you can ask her to attend the session. ठीक है? Then I will answer her question. Is that clear? तो जिसका भी क्वेश्चन है, that person has to be here. क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि इट हैज़ टू बी योर थिंग, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स फॉर यू. तो हमारे को जो समझ में आता है हम किसी और के लिए नहीं समझ सकते. ठीक है, हर पर्सन की फीलिंग अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है. ओके, सो इट विल बी नाइस इफ दैट पर्सन ऑल्सो, यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड हियर, यू कैन शेयर द लिंक विद हर एंड शी कैन बी हियर. Yeah, okay. So what we'll do is we'll do a gratitude and thank you so much. It is 10 o'clock and I know कल संडे है इसीलिए आप लोग सब लोग हो यहाँ पे. कल से हम लोग टाइम से वाइंड अप कर देंगे so that you can go to school, do your work and then again come back. Yeah. So thank you so much. Thank you, ma'am, and sorry for the disturbance. There's no disturbance. It is all fun, Avi. And I was just thinking, अरे मेरा तो एक cousin भी है अभी एक्चुअल में. हाँ, and he is in Australia. I was thinking कहीं अभी वो तो नहीं है, but I don't have his number. तो I was thinking, I said नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा. So it's totally cool. Yeah. So this is fun. And I'm cool with it. Okay. As long as my one friend need to do this class. हाँ, तो please bring your friend. Okay. Yes, please bring your Ma'am, friend. How मतलब अच्छा. You can either send school friend. So what you can do is just you can ask your mama to share the group link with that friend. Okay? Okay. Yeah. Thank you. Yes, thank you. So what we'll do is we will thank the supreme power, है ना? हम सब जन कुछ प्रे करते हैं क्या स्कूल में, है ना? असेंबली में कुछ प्रे करते हो आप? या तो किसको प्रे करते हो? अपने भगवान को, गॉड को करते हैं. आपकी कोई फेवरेट गॉड है? जिनको याद आता है तो आप उनको करते हो क्या? तो अभी जब हम लोग कृष्ण जी हैं, होंगे हनुमान जी हो सकते हैं, शंकर जी हो सकते हैं, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, जो भी हो सकते हैं. जब भी हम प्रे करो, कुछ भी आप ड्रीम लिख रहे हो तो आप उनको याद करके लिखो. ठीक है, हम लोग इट इज़ नॉट कि हम लोग कुछ रिलीजन फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, बट इट इज़ जिसमें हमारा विश्वास होता है. इफ़ वी डायरेक्ट आवर प्रेयर्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, टू दैट डेटी. अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो मेरे मम्मी पापा सबसे अच्छे लगते हैं, तो अगर आप वो थैंक यू प्रेयर कर रहे हो तो आप उनकी तरफ भी डायरेक्ट करके कर सकते हो. ठीक है, दैट इज लाइक यू आर फोकसिंग योर एनर्जी, यू आर थैंकिंग दैट पर्सन, योर पेरेंट्स, दैट डेटी, दैट भगवान जी, एंड यू आर सो ग्रेटफुल दैट यू हैव गॉट एवरीथिंग. ओके, सो कनिष्का, we will discuss about that. Positive सोच, negative thoughts. Ma'am, who's that? हर्ष. मैम, अगर हम लोग कुछ डेंजरस चीज सोच ले, अगर वो हो भी गई तो मैम तब क्या होगा? डेंजर चीज सोच लिए और हो भी गई तो क्या होगा? डेंजरस हो जाएगी, है ना, नेगेटिव हो जाएगी. तो उसको स्टॉप करने के लिए हमको क्या करना है? जैसे ही वो थॉट आए, अपना ध्यान कहाँ लगा देना है? व्हाट इज योर हॉबी? ओके नहीं, व्हाट इज योर हॉबी? Hobby is my badminton. बैडमिंटन ना, ठीक है, वो वी हैव 2 बैडमिंटन प्लेयर्स हियर. या तो आपको तुरंत सोचना है कि यस, उस शटल में इतने फेदर्स हैं. आपको अपना ध्यान उस डेंजरस थॉट से, उस नेगेटिव थॉट से हटा के बैडमिंटन की कोई चीज़ पे लगा देना कि यस, दिस इज़ माय फेवरेट रैकेट, इस कंपनी का है. उसका गट चेंज करना है कि शटल में इतने फेदर्स होते हैं, पापा को बोल के और शटल मंगानी है. आप उसका बेस्ट प्लेयर कौन है? आपको अपना ध्यान उस डेंजर थॉट से हटा के उस हैप्पी चीज में लगाना है. ठीक है मैम, मैं आपसे इसलिए ये पूछा क्योंकि मैम मैं डेली कुछ सोचता हूँ कि आज रात में अगर मैं अपने रूम में सोऊंगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, इसलिए नहीं, तो आपको अपना ध्यान वहां से हटाना है. हमने बात की ना कि हमारे को हमारा फोकस उस नेगेटिव चीज से हटा के पॉजिटिव में लेके आना है. वो ऐसे ही करना होता है. ठीक है, आते हैं हम सबके मन में कभी कभी नेगेटिव थॉट आते हैं, तो आपको अपना ध्यान वहां से हटा के, सपोज व्हाट इज योर फेवरेट फूड? मैंगो. ठीक है, अब सोचना है उस डेंजरस थॉट को हटाइए कि वाओ कितना यमी मैंगो था, तो लव मैंगो शेक, कितना जूसी था, मैंने आज ही एक खाया, मम्मा को बोलेंगे कल भी बनाएंगे, इट इज़ सो यमी. ठीक है, मैंगो संदेश कितना अच्छा होता है. तो तुरंत आपको अपना थॉट वहाँ से हटा के जो फेवरेट चीज़ हो उसमें लगानी है. आपकी फेवरेट हॉलीडे क्या है? आप कहाँ गए थे लास्ट? मैम, कश्मीर. क्या क्या किया था वहाँ पे? अपना ध्यान उस नेगेटिव थॉट से हटा के कश्मीर की हॉलीडे पे लगा देना है. ठीक है, आपकी सिस्टर है, ब्रदर है, कोई है? सिस्टर है, स्मॉल सिस्टर. 3 years, so cute. Yes, and one more that it is 1 year old.
वाओ, तो आप सोचो नेगेटिव थॉट में जाना ही क्यों है? ठीक है, तुरंत अपना ध्यान अपने सिस्टर, अपने हॉलिडे, अपने मैंगो, अपने बैडमिंटन उस पे लेके आ जाना है। ठीक है, गॉट इट? यस। अब बोलो कि वाओ, मम्मा से बात करके कितना मजा आता है। अपना ध्यान उस थॉट से हटा के उस चीज में लगाना है जो हमको अच्छी लगती है। ओके, सो वो चीज पे एनर्जी नहीं जाएगी, पॉजिटिव चीज में एनर्जी जाएगी तो पॉजिटिव चीजें होंगी। ओके, या तो ठीक है, ऐसे ही होगा। कोई भी नेगेटिव थॉट, कई जन का ये क्वेश्चन है, कुछ भी नेगेटिव थॉट अगर मन में आ रहा है, हमको हमारा ध्यान पॉजिटिव चीज में लगाना है। पॉजिटिव चीज कौन सी होती है? बहुत सारी हैं, लेकिन हमको कौन सी अच्छी लगती है? जो मेरे को हैप्पी करती है। लाइक इफ आई लाइक वॉचिंग फ्रेंड्स, अभी आपने कोई अम्ब्रेला एकेडमी, स्ट्रेंजर थिंग्स, इस टाइप की कोई भी चीजें देखी, इफ यू लाइक दैट, उसका कोई आपको लीड एक्टर एक्ट्रेस अच्छा लगता है, यू फोकस ऑन दैट। ठीक है, कि यस दिस इज सो ऑसम, कितने अच्छे से उसके पास इतने सारे स्किल्स थे, व्हाटएवर। जो अच्छा लग रहा है अपना ध्यान वहां से हटा के वहां पे लगा दो। आपको ड्रेसेस अच्छी लगती हैं, आपको कलरिंग अच्छी लगती है, स्केचिंग अच्छी लगती है, रणवीर सिंह अच्छा लगता है, आलिया भट्ट अच्छी लगती है, पुट योर फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। उस नेगेटिव थॉट से हटने का एक यही उपाय है। ओके, यू हैव टू चेंज योर चैनल। ओके, यू हैव टू ट्यून इट टू मैंगो, कैडबरी, पुचका, केक, जहां भी, but you have to change the channel. Okay, yeah, any more questions? Yeah, मैम जैसे हमें कोई चीज चाहिए, मैम उसे हमें बार बार सोचते रहना होगा? नहीं, जैसे क्या चीज़ है, हम लोगों ने बोला पहले हमको एकदम स्पेसिफिकली पता होना चाहिए वो क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, इट इज़ लाइक इफ़ आई वांट नाइकी स्नीकर्स, तो मेरे को पता होना चाहिए कि उसकी, ऑफ कोर्स मैंने ऑनलाइन उसकी फ़ोटो देख ली होगी। ठीक है, उसमें कैसा वो उसका वो नाइकी का साइन बना हुआ है। ठीक है, उसका प्राइस क्या है, उसकी लेसेस कौन सी कलर की हैं। ठीक है, हमको उसके बारे में सब पता है। फिर हमको उसके बारे में कैसे सोचना है, दैट आई एम वेयरिंग इट। Okay, it is so comfortable, it is matching perfectly with my attire. Wherever I am going, everyone is saying कि वाओ कितने अच्छे शूज़ हैं तुम्हारे, एंड आई एम सो हैप्पी। उसको देख देख के हमको कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है। ठीक है, मेरी फोटोग्राफ मैंने इंस्टा में भी वही फोटो लगाई हुई है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू थिंक ऑफ इट, नॉट कि अरे इतने महंगे हैं, कब मिलेंगे, कब मेरा बर्थडे आएगा, यू नो, कब मेरे को गिफ्ट मिलेगा, हम कब जाके खरीदेंगे, वो मेरे साइज़ का तो था ही नहीं शॉप में। इफ़ आई एम थिंकिंग लाइक दिस, हम बहुत सोच रहे हैं बट हम नेगेटिवली सोच रहे हैं उसके बारे में। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू थिंक पॉजिटिवली अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। आंसर्ड? ओके, थैंक यू। Yeah, thank you. Yes, Kshitij, you also have a question? Yeah, I recently read a book named Power of the Subconscious Mind, and your lectures are like same. I'm like listening to your lectures, and it's like basically the same thing. See, everything is the same. Okay, you have already read The Power of Your Subconscious Mind. How old are you? Sorry, I forgot. 15. Okay, very good. So keep reading. It's a wonderful habit. If you love reading, then you should not be wasting your watching lots of reels, by the way. Okay, you have to focus your energy back on the books. Yeah, so keep reading. It's just wonderful, and most of the books talk about the same thing. Most of the books. Yeah, so keep reading, keep staying positive, and keep manifesting and, you know, attracting whatever you want in life. Okay, thanks, ma'am. Yeah, thank you. So tomorrow we are going to learn many more things, that how do we attract that? What is that power? कि हम इतनी चीज़ें सोचते हैं लेकिन मुझे वो मिलती क्यों नहीं? हाँ, क्यों उसको मिल जाती हैं या किसी और को मिल जाती है, मुझसे वो इतनी दूर क्यों है? कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, टू हाउ टू गेट दैट पावर टू अट्रैक्ट व्हाटएवर वी वांट। जो लिस्ट बना रहे हैं वो वाली चीज़ें हमारी लाइफ में कैसे आएंगी? Okay, so thank you so much. I'm so happy to see so many of the faces which were there earlier, and now also Tanvi, yeah, Preksha, so many of you, yeah, and one very nice name, she's not here anymore, but yeah, very nice to see all of you, and I'm so happy. So we'll do a gratitude prayer, and then we will definitely I'll post कि क्या assignment है आपको करना है in the group, and we will connect tomorrow. Yeah, so let's join our hands, close our eyes, and let's do gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this awesome day that we had today. Thank you for all the love and affection that my parents, my family, and my friends gave. Thank you for the yummy food and the yummy water that I had today. Thank you for all my friends, their happiness, their smiles, and their health. Thank you, thank you, thank you. Yes, so thank you so much, and I'm so happy to be here
एंड जिसको जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क, बिकॉज दिस आई नो ये वॉल्टरी सेशन है, आपको लग रहा हो कि क्या हम लोग बातें कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, बी इन द प्रोसेस और आप देखोगे जो चाहिए, कैसे छोटी छोटी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, कैसे मम्मा आपको और प्यार करने लगती है, आपको आपका भाई और बहन और अच्छा लगने लगता है, और वो भी अच्छा हो गया आपके संग ऑटोमेटिक। कुछ आपको एक्स्ट्रा सॉरी थैंक यू जाके उसको नहीं बोलना है, इट इज़ ऑल इन योर माइंड दैट यू आर मेकिंग योर लाइफ मोर अमेजिंग। ओके, जैसे हमने पीछे लिखा है ना, यू आर मेंट टू हैव एन अमेजिंग लाइफ, इट इज़ एक्चुअली दैट योर लाइफ इज़ मेंट टू बी अमेजिंग। भगवान जी ने इतने प्यार से हमको बनाया है और हमारे मम्मी पापा के पास भेजा है टू हैव एन अमेजिंग लाइफ। ओके, यस परिणीति, यू हैव अ क्वेश्चन? Ma'am, can you send assessment in the group? Sorry? Ma'am, can you send assessment in the group? Yeah, I will send the assignment in the group. Okay. Yeah. So thank you. Yes, Preksha. Yes, you have a question. No, actually I was sharing. So should I share today or tomorrow? Yes. We can share today also. Perfect. And अगर लगेगा कि कल भी आप शेयर कर देना. I'm very happy with sharings always. Yes. I know that's नहीं करना था प्रेक्षा, कितने लोगों को इंस्पायर होते, देखो आधे जन तो चले गए सोने। हाँ, सैटरडे नाइट है। Yes, tell me. Yeah. So Mama was doing the session in April, I guess. Yeah. उस time पे I was listening to it regularly. Okay. So I also started manifesting for my Manali trip, if you know. Okay. Yes. So Manali trip, I was manifesting. I was saying that I am in the Manali trip. I am watching snow, touching snow and everything. And I went to the trip in June after my boards. Wow. Awesome. Very nice. So there are a lot of processes that we are going to, learn in this session, whether it's visualization, vision board. We will do all of that in the coming days. Okay, I'm trying to, compact, and compress the whole magic book and a lot of things in these 10 days. Okay, so I know sometimes थोड़ा time आगे पीछे हो जाएगा, तो please bear with me, नहीं तो थोड़ा जल्दी मिल लेंगे if you feel that that 10 o'clock बहुत late हो जाता है in school days, so we can connect a little earlier. We can maybe connect 8:30, 8:15 if you guys are okay with that. Yeah, तो आप लोग group में लिख देना that if you want to और बातें करनी है और समझना है तो हम लोग थोड़ा जल्दी भी मिल सकते हैं। या मैम, अगर हम आफ्टरनून में क्लास रख ले तो? आफ्टरनून में ना, सी अक्षिता, मैं तो आई एम वर्किंग। ओके, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? मैम अक्षिता। हाँ, अक्षिता ओनली ना। या सो मेरा काम रहता है, तो आफ्टरनून में आई विल बी वर्किंग, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट। दिस इज द ओनली टाइम दैट आई एम फ्री। इफ यू गाइज से आई कैन स्टार्ट अराउंड 8:15, हाँ, अगर सबको कंफर्टेबल लगता है तो वी कैन स्टार्ट एट 8:15 एंड वाइंड अप बाय 9:30, तो आप लोग ग्रुप में लिख देना। बट ये नो प्रॉब्लम, तो आप 8 to 10 का कोई भी टाइम चूज कर लो, 1.5 hours आई एम फ्री। इफ यू गाइज आर ओके विद इट देन वी कैन कनेक्ट। या सो थैंक यू। एंड यस हनी, यू हैव अ क्वेश्चन? मैम, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप कोई विश कर रहे हो और आपको मिल गया वो चीज़? ओह, बहुत सारे yes, बहुत सारे हुए हनी। इट्स लाइक आई टोल्ड यू, आई हैव नॉट टोल्ड यू मे बी, बट मैंने शेयर किया ना कि मेरी जो रिलेशनशिप थे ना मम्मी के संग, वो ऐसे ही था। रोज़ मेरे को बोलता, अरे ये करना है, वो करना है, ऐसे ही चलता रहता था। ठीक है, और जब से हमने ये प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं, वेदर इट्स ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हमने विजुअलाइजेशन जो आपको बोला ना, आस्क, बिलीव, रिसीव, पॉजिटिव थॉट्स रखना, वो करते करते आज पिछले 2 साल में मेरे मम्मा के संग मेरा ब्रिलियंट रिलेशनशिप हो गया। अब बोलोगे नहीं ये कुछ नहीं है, ये कोई ड्रीम थोड़ी होती है, ये थोड़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक आई बॉट माई लैपटॉप यूजिंग दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। या मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन से मिले, बहुत सारे क्लाइंट्स। हाँ, मेरे क्लाइंट्स जो थोड़े से ना डांटने वाले जैसे टीचर टाइप के जो होते थे, उनके संग मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, मेरे मनी में इतने सारे मैजिक हुए। मैजिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैजिक किसको बोलते हैं? जो चीज़ नहीं अपन सोच सकते कि कैसे हो सकती है, उसी को मैजिक बोलते हैं ना, उसी को मिरेकल बोलते हैं। तो वैसे बहुत सारे चीज़ मेरे वर्क में हुए, मेरे हेल्थ में हुए। ओके, एंड मेरे को पहले ना सोने में मेरे को लगता था कि क्या सोना है, सोना ही नहीं चाहिए, टीवी देखो, बुक पढ़ो, नेट पे सर्फ करो। आई यूज टू डू ऑल दिस, बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस प्रैक्टिसेस, मेरी स्लीप बहुत अच्छी हो गई। हाँ, मेरा डाइजेशन और अच्छा हो गया। ठीक है, सो लॉट ऑफ थिंग्स विच आई वॉन्ट, ऑल दोज थिंग्स हैपन फॉर मी। सो दैट इज़ वाई हर जन की लिस्ट अलग होती है ना, है ना।
मेरे को मैंगो अच्छा लगता है, किसी को एप्पल अच्छा लगता होगा, किसी को स्ट्रॉबेरी अच्छी लगती होगी। तो जिसको जो अच्छा लगता है अगर वो उसको मिल जाए तो दैट इज़ अ मिरेकल, दैट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। या सो दैट इज़ व्हाट वी विल आल्सो बी डूइंग, वी विल बी क्रिएटिंग आवर लिस्ट एंड वी विल बी अट्रैक्टिंग। आप कर रहे हो? या ओके, आंसर्ड? यस मैम। या ओके, सो थैंक यू एंड आई एम श्योर हम सबकी विशेस पूरी होंगी प्रोवाइडेड वी फॉलो दिस लॉ, प्रोवाइडेड बिकॉज उन्होंने बोला ना ये लॉ एकदम सटीक है, एकदम एग्जैक्ट है, प्रिसाइज है, बिकॉज जैसी फीलिंग्स हम एमिट करेंगे वैसे ही हमारे लाइफ में वो वापस आएंगी चीज़ें। ओके, तो अगर आपकी जो भी ड्रीम है उसको आप कैसी फीलिंग दे रहे हो, कैसे थॉट्स दे रहे हो, वैसे ही वो वापस आएगा। या सो थैंक यू एंड आई एम श्योर अब हम लोग को जाना चाहिए वरना सबकी मम्मा लोग बोलेंगी लेट नाइट सेशन नहीं चलेगा। या so thank you so much and I love you all. So let's connect tomorrow. Okay, thank you. So happy to see all of you. Thank you so much, Tan. We love you. Bye bye. Bye ma'am. Bye bye. Thank you ma'am. Good night. Thank you so much. Thank you ma'am. Bye ma'am.